वेलकम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। जी सर। जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यू लिव अ बिजी लाइफ। आप क्लिनिकल काम भी करते हैं, राउंड भी करते हैं, और वजारत भी करते हैं, बस और सर क्या वेबिनार करें। भी करते हैं। जी सबसे इम्पोर्टेंट सर इज टीच रिसर्च एंड रिसर्च टू मी एंड देन माय पेशेंट्स एंड देन बाकी सब कुछ लीस्ट इम्पोर्टेंट इज माय एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सही। जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप यूँ कीजिए, जावेद साहब के थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, क्योंकि एक साहब और हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है, कैमकाना के प्रेसिडेंट, उनसे मैं इस दौरान बात करता हूँ। तो आप इस दौरान अपने इम्प्रेशंस थोड़े से बताइए वजारत सेहत के बारे में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत आई होप देर इज एवरीबडी इज उर्दू स्पीकिंग और आर देयर एनी पीपल। आवाज़ नहीं आ बिल्कुल, रही है। उर्दू उर्दू में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलें बस ठीक है सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और मैं अख्तर भाई से बहुत ही दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ, और तमाम अपने भाइयों से, बहनों से, हुएवर इज़ ऑनलाइन और हुएवर इज़ नॉट इवन ऑनलाइन, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की जस्ट टू मीट यू virtually. But I hope that all of us will meet physically very very soon. देखें, जो मेरे बारे में, मैं तो यही कहूँगा कि मैं एच एस एन कॉलेज में पढ़ता रहा। फिर मैं रावियन हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता रहा, एफएससी वहीं से की, और फाइनली किंग एडवर्ड से अपनी ग्रेजुएशन की। एंड देन मोस्ट ऑफ माय ट्रेनिंग इज इन यूके, बट आई डिड ट्रेन टू सम एक्सटेंट इन यूएस, एंड देन आई केम बैक होम क्वाइट अर्ली। जब मैंने सोचा कि अब यहाँ पे मेरा लर्निंग का पूरा हो गया, तो आई इमीडिएटली came home. I was appointed senior registrar, and then onwards, I ended up being first dean of medicine of King Edward Medical University, and then I was appointed principal Allama Iqbal Medical College, and then I was appointed from there onwards founding principal of Shahid Zulfikar Ali Bhutto Medical University, which is the PIMS hospital. So I was chief executive of PIMS, and this was a tenure job of 4 years, which Alhamdulillah I completed. And then this university is now a very impactful university and the only university of federal government. And then I also, at that time, founded another medical college and became principal of that. That was FMDC, Federal Medical and Dental College. And then after completion of that tenure, I was appointed Vice Chancellor of University of Health Sciences, which is the largest public sector university of Pakistan, with more than 60 medical dental colleges, allied health colleges affiliated with it. And we shifted to the new campus then, which is on the motorway. And it was a very happening sort of a tenure for me. And then I was appointed as this minister of specialized health and medical education in Punjab. Throughout my coming to Pakistan, I have been international advisor to Royal College of Physicians, London, and also to many other advisory bodies around the world. I am still very much part and parcel of Royal College of Physicians, London. We usually visit Royal College almost on annual basis. COVID की वजह से कुछ बंद हो गया, and I keep on advising them. So I also am very closely associated with that college. उसके अलावा पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन एक बॉडी है हमारी, जो मैंने ही अपने साथियों के साथ फाउंड की अबाउट 3 years ago, 4 years ago। और उसकी यूके में भी चैप्टर है, यूएस में भी चैप्टर है, यूएई में भी चैप्टर है,
uh, all over the world. It has chapters. This is purely an internist body, and we do have chairs of subspecialties, like cardiology की chair है, diabetes endocrinology की chair है, मुख्तलिफ. And our next annual conference is in Islamabad. This will inshallah start on 28th of April. That is the weekend after Ramadan or after Eid. And 3 days की होगी, और we are expecting about 100 speakers. जो लोग आप में से उधर आना चाहें तो most welcome. We also give fellowship to people who have excelled in the field of internal medicine or a subspecialty of internal medicine. So हमारी फॉर्मेट ये है कि हम शुरू करते हैं एक कॉन्वोकेशन से, जिसमें एक प्रोसेस है जिसके तहत हम की कोई रिकमेंड करता है, कुछ सेकंड करता है, फिर फाइनल एक हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी इनको अप्रूव करती है, एंड फिर हम उसकी वहाँ इनवाइट करते हैं. इट इज़ कॉल्ड फेलो, FPSIM, फेलो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन. एंड फिर वो हम अवार्ड करते हैं, पूरा एक हमारा फ्रेमवर्क है. और फिर उसके बाद हमारी इनाग्रल सेरेमनी होती है, और फिर 3 days ऑफ वेरी कोर लर्निंग ऑफ इंटरनल मेडिसिन के सब्जेक्ट्स. एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि all of you who are present or even not present, they are welcome to join us. अगर आप चाहेंगे वहाँ टॉक करना तो फिर भी आप अपना एब्स्ट्रैक्ट और फोटोग्राफ भेज दें. we'll try to arrange the sponsorship and everything, ताकि हम मिलजुल के काम करें. इसी तरह हमने एक लंदन के होटल में भी मैं गया था लंदन, तो वहाँ हमारा प्रेसिडेंट इस वक्त यूके का तंजीम हैदर रज़ा है. You must be knowing him. He is my class fellow. And जो जनरल सेक्रेटरी है वो आसिफ हमायूं है. He is endocrinologist in Milton Keynes. So we are planning कि हम इस ईयर में किसी ना किसी टाइम पे फिर लंदन में भी या यूके में कम से कम कोई रखेंगे एक्टिविटी. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि you are most welcome to become a member. You are most welcome to become a fellow. If you apply, then we will process it. तो जो आज का टॉपिक मुझे बताया गया था, अतर ने बताया था, वो बेसिकली ही सेड के अबाउट हेल्थ सिस्टम्स हम कुछ बात कर लें. इज इट सो? आप म्यूट हुए होंगे. Thank you. I am not as good an expert as you are on webinars, Javed sahab, so I'm unmuted now. तो इसका जो एजेंडा मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में. आई थिंक वी हैव एनफ नंबर ऑफ पैनलिस्ट टू स्टार्ट द कंटेंट्स, मेन कंटेंट्स ऑफ द मीटिंग. तो अब्दुल्ला हमारे होस्ट हैं, ही इज़ आवर टेक सपोर्ट एज वेल. वो थोड़े से हाउस रूल्स बता दें ताकि हम इसको स्मूथली कंडक्ट कर सकें. उसके बाद मैं आपको एजेंडा की आउटलाइन बताता हूँ. अब्दुल्ला. Thank you, Atasab. So far, meeting is running very smoothly. So I'll just reiterate a few points. All the participants would remain muted unless you are a speaker or a panelist. And if you want to ask any questions, then just post in the chat box, and one of the panelists will pick it up. Thank you very much. दैट्स एक्सीलेंट. एक और चीज़ ये है कि अगर आप अपने वीडियो ऑन रखें और ऑडियो म्यूट रखें तो उससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन मिलता है, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा इंटरैक्टिव फीलिंग होती है कि आप लोगों से बात कर रहे हैं और खाली ब्लैंक स्क्रीन से बात नहीं कर रहे. तो हमारे पैनल में इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं उसमें तारिक अजीम साहब हैं, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं डार्बी में, और उनका इंटरेस्ट है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ब्रिटेन के मशहूर और नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इनको इंटरेस्ट है प्राइमरी PCI सपोर्ट करने में लाहौर में, पाकिस्तान में, पंजाब और पाकिस्तान में. तो जिसके बारे में ये थोड़ी बात करेंगे बाद में, और हम जावेद अकरम साहब से भी इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं. आसिफ खान साहब जो हैं वो मैंसफील्ड और नॉटिंघम एरिया में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कैमका यूके के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इज़ अ वेरी डायनामिक फिगर. और यहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी कार्डियोलॉजिस्ट की यूके में, उसमें भी एक्टिव हैं. डॉक्टर नदीम सज्जाद राना जो हैं यहाँ पे एक
पैन मेडिकल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एपनी है, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। वैसे ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, और यहाँ के सोशल कॉजेज़ में और यूके के जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स के मसाइल हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत सरगर्म है। राहत तनोई साहब जो हैं वो हमारे कैम्का यूके के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और ये टॉप क्लास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। और अभी हमने जो यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ केयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी लाहौर में, उसमें इन्होंने डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी के ऊपर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था। तो राहत तनोई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वर्दा तारिक शफ़ी साहिबा जो हैं उनकी अभी वीडियो में नहीं नज़र आ रही, लेकिन वो मौजूद हैं। वो एफजे एलमनाई जो यूके में हैं उनको लीड करती हैं। अपने स्टूडेंट डेज में ये प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट यूनियंस की एफजे में, और अभी ये एफजे की जो डॉक्टर्स बॉडी है एलमनाई की यूके में उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो इनका कहना है कि इनको ज़रा जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन आई वांटेड हर टू बी पार्ट ऑफ दिस पैनल एंड दिस डिस्कशन। और हस्कील काज़मी साहब इज़ आवर यंग के ई डॉक्टर जो कि कैम का यूके में बहुत एक्टिव है। तो इसका मैं थोड़ा सा एजेंडा आउटलाइन कर दूं जावेद साहब। हम पिछले कुछ सालों से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में कि हम उसको सपोर्ट करें, उसको एडवर्टाइज करें और उसके लिए एक्टिव रहें पाकिस्तान में। जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर आपको जैसे अंदाज़ा होगा यूके के दिनों से जब आप यहाँ थे, कि यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ सर्विस है एनएचएस, उसमें सब लोगों को इलाज मुफ्त है एट द पॉइंट ऑफ केयर, एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटली फ्री, चाहे वो कोई सिंपल मेलेडी हो या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशनल प्रोसीजर हो, और दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल रीजन्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द यूके एंड ऑल क्लासेस, ऑल इंडिविजुअल्स of the society without any regard to their capacity to pay. तो बहुत सारे दुनिया के मुल्कों ने ये चीज़ें अचीव की हैं या इसके बारे में बहुत रैपिड प्रोग्रेस की है। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कि इस बारे में एफर्ट्स हुई हैं, और एक एफर्ट उसमें जो थी वो यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम थी जो कि सेहत कार्ड के नाम से मशहूर थी और अभी भी चल रही है। लेकिन आप से हम ये पूछेंगे कि उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, और ख़ास तौर पे उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, क्या बजटरी इश्यूज आए हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रेगुलेट करने में क्या आसानियाँ हैं और क्या दुश्वारियाँ हैं। और एक और बात जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो सेकंड पार्ट ऑफ द एजेंडा होगा, वो प्राइमरी पीसीआई है, क्योंकि दो यहाँ पे हमारे बहुत इंटरेस्टेड कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में काम किया है। आपके साथ हमने मीटिंग की थी लाहौर में, उसका बहुत बहुत शुक्रिया इसके बारे में। और हम ये भी जानते हैं कि जब आप आए थे, जब आपने टेक ओवर किया था एज अ केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर, तो आपने पहला काम ये किया था कि प्राइमरी पीसीआई को सपोर्ट किया था और एक्चुअली इस्टेब्लिश किया था ऑलमोस्ट ओवरनाइट इन लाहौर एंड अदर हॉस्पिटल्स ऑफ पंजाब। सो उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो तीसरी जो मेन एजेंडा आइटम है वो है स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस, जो कि आपने हमने सर्कुलर देखा है और आप पब्लिक मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे और सोशल मीडिया पे आपकी उस बारे में बातें सुनी हैं कि आप वो भी कीन हैं इस्टेब्लिश करने में। तो पहले हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर से, और आप जब अपनी बात कर लेंगे तो फिर हम डिस्कशन करेंगे और पैनल वालों से कहेंगे कि आपसे पूछें। तो जावेद अकरम साहब, ये बताइए कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर ख़ास तौर पे सेहत कार्ड की इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं पंजाब में। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जब मैं यूके में काम करता था और अब आप करते हैं, देखें वहाँ फ्री एवरीथिंग नहीं है। वी यूज टू कंट्रीब्यूट हैवीली, हमारी सैलरीज में से कट जाता था, और वहाँ ज़ाहिर है ये पार्टिसिपेटरी है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ टैक्स पेयर्स की तादाद सबसे कम है, लेस देन अबाउट 8%, 9% टैक्स पेयर्स हैं। तो दुनिया में ये असूल है, चाहे आप मेडिकेट में यूएस में चले जाएं या आप एनएचएस में, कि जो हेल्दी लोग हैं वो अनहेल्दी के लिए पे करते हैं और जो रिच हैं वो पुअर के लिए पे करते हैं। जाहिर है वो टैक्सेशन की स्लैब उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अब पाकिस्तान में जहाँ पे टैक्स पेयर्स बहुत ही
आटे में नमक के बराबर हैं, तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना कि जो अमीर से अमीर लोग भी हैं वो भी उससे बेनिफिशरी होंगे, और जो बंदों के पास एक वक्त का या 2 वक्त का खाना खाने की पैसे नहीं हैं वो भी उसके बेनिफिशरी होंगे। तो हमने सबसे पहली चीज़ हमने ये की थी कि इट वाज नॉट सस्टेनेबल। हमारे ख्याल में हम 140 अरब रुपया, एक 140 बिलियन रुपीज वी वर स्पेंडिंग ऑन दिस, एंड वी वर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन द हॉस्पिटल्स एट ऑल। हॉस्पिटल्स वर इन शैम्बल्स, और जो आम लोगों के हॉस्पिटल्स थे वो बिल्डिंग्स अनसेफ करार दे दी गई थी, काफ़ी सारी। ज़्यादातर के 5 to 8% की जो बेसमेंट थी वो क्रॉनिकली भरी हुई थी पानी से, और उसकी वजह से हाइजीन के प्रॉब्लम्स, डेंगू के प्रॉब्लम्स, मच्छरों के प्रॉब्लम्स, वाटर कंटेमिनेशन के प्रॉब्लम हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा थे। तो ऑब्वियसली हमें एक चॉइस मिली कि अब क्या करना है हमने। तो हमने उसको किया कि देखें यूनिवर्सैलिटी उसकी ख़त्म कर दें, हेल्थ कार्ड मौजूद रहे, लेकिन वो रहे पुअर के लिए। पुअर का डाटा हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़ा रॉबस्ट डाटा है, जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैश एलोकेशंस करता है। वो हमारे ख्याल में नाकाफ़ी था, और हमने जब रमज़ान में गए आटा बांटने तो हमें वहाँ पता चला कि बहुत सारे लोग वाकई ही गरीब थे, मगर दे वर नॉट एडेड इन पंजाब इन दैट स्कीम, बिकॉज वो भी हमने बेस किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। तो हमने फिर अलाउ कर दिया उनको भी आटा लेने का जो थे, और लेकिन उनको भी हमने अपने डाटा में ऐड कर लिया, एलिजिबल कर दिया कि उसका हमने एक इंडेक्स रखा। फिर हमने कहा जी इसको ना गरीबों के लिए तो फ्री रखें, जो अमीर इसमें कवर लेना चाहता है दे शुड पे द प्रीमियम देमसेल्व्स। और वो प्रीमियम जो हमने नेगोशिएटेड प्रीमियम है विद स्टेट लाइफ, बिकॉज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कवर देती है, उनका प्रीमियम कितना है आप इमेजिन कर लें, 4751 रुपीज़। तो वो पाउंड्स में आप देखें तो मेरा ख्याल है कि 40-30 पाउंड्स बनेगा करीब, मेरा ख्याल है इससे भी कम इन ईयर। एंड वो 1 मिलियन रुपीस का कवर है, और वो आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को कवर करता है, आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को। तो हमने अमीरों से कहा जो हमारे डाटा में नहीं आए, जो गरीब अमीर गरीब को हमने इस तरह डिफाइन किया कि उसके बिल्स देखे, बिजली के, उसके पानी के बिल देखे, उसके प्रॉपर्टी देखी, उसकी ट्रैवल अब्रॉड देखी, उसका पूरा क्राइटेरिया फ्रेमवर्क बनाया। तो हमने कहा जी गरीबों के लिए ये टोटली फ्री रखें, अमीर अपना पे करके 4750 अपना भी अपने नौकरों का भी ले लें क्लेम, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और वो दे विल एंजॉय द यूनिवर्सैलिटी देन। तो उसके अलावा इसका यूनिवर्सल स्टेटस हमने ख़त्म किया। तो उसके बाद हमने देखा कि इसका एब्यूज़ बहुत ज़्यादा था। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, वो तो बहुत लंबी कहानी है। हमने ऑडिट किया, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया, तो हमारे पाकिस्तान में 30%, 35% के करीब सी सेक्शंस होते हैं, 65% नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल का कंपोजिट डाटा। इसमें 91% सी सेक्शंस हुए, सिर्फ 9% नॉर्मल डिलीवरीज हुई। तो वी थॉट कि इट वाज अननेसेसरीली they were our girls were subjected to सी सेक्शंस। तो उसकी ऑब्वियसली आपको पता है मॉर्बिडिटी भी है, मोर्टेलिटी भी, और लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट है कि वन से सी सेक्शन इज ऑलवेज ए सी सेक्शन। तो इसका फिर हमने दूसरा जो देखा वो कार्डियक इंटरवेंशंस का था, और कैबिज का। कैबिज काफ़ी जगह पे एमओज ने कर दी, मेडिकल ऑफिसर ने विद नो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज नॉट लाइसेंस्ड टू डू कैबिज बाय हेल्थ केयर कमीशन। उसके अलावा हमने देखा कि जो इंटरवेंशंस थी शादी घरों में, लैया में 2 और काफ़ी जगह पे शादी घरों को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू एंजियोग्राफी स्वीट्स, और वहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और वहाँ पे की मोटेलिटी भी काफ़ी हुई। और कई जगह पे जहाँ पे हमारा ख्याल था कि स्टेंट्स की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको स्टेंट्स हो गए, जहाँ एक की ज़रूरत थी वहाँ 2 लग गए। अगर लंबा स्टेंट डालना था तो 2 अप्रोक्सीमेशन करके डाल दिए गए, जिससे ऑब्वियसली हर्निएशन हो गई वेसल्स की। तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, इन्फेक्शन रेट एकदम बढ़ा। तो इसमें वो भी हॉस्पिटल्स कर रहे थे बिजनेस हु वर नॉट लाइसेंस्ड टू डू दैट बिजनेस, बिकॉज हमारी लाइसेंसिंग जो है वो यूएचआई की
वो UHI खुद नहीं करता, लाइसेंसिंग एक थर्ड बॉडी करती है जो ऑटोनमस बॉडी है, और उनका अपना बोर्ड है, वो है हेल्थ केयर कमीशन ऑफ पंजाब। तो दे लाइसेंस के कौन सा प्रोसीजर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, एंड दे ऑल्सो लाइसेंस द पर्सन, ह्यूमन रिसोर्स को भी लाइसेंस करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा था, 90% वर अनलाइसेंस्ड एंड ऑल्सो। सो आज हमने ये कहा कि कुछ रिफॉर्म्स ये लाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब अगर आप जाएंगे तो इट हैज़ टू बी लाइसेंस्ड, और वो बंदा जो आपको इंटरवेंशन करेगा ही और शी हैज़ टू बी लाइसेंस्ड। उसके अलावा हमने कहा कि हम रीइंबर्समेंट्स नहीं करेंगे उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो फुली लाइसेंस्ड नहीं है। तो किसी के पास पार्शियल लाइसेंस था, एक्सपायर हुआ हुआ था, हमने कहा इन गुड स्टैंडिंग और पूरा लाइसेंस। फिर हमने कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन्स की ही कमेटी बनाई कि वो जाके इसका पैरामीटर्स सिक्योर करें, उसमें एनेस्थेटिस्ट, परफ्यूजनिस्ट सब रखे कि वो देखें कि सेफ है कि नहीं। इसी तरह गायनी वालों की भी कमेटी बनाई कि हेल्थ केयर कमीशन को वो गाइड करती है। फिर हमने ये किया कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे हम गवर्नेंस कर सकते हैं ज़्यादा इजीली, आप टोटली फ्री हैं, तो ऑल पीपल जो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, पुअर पीपल, दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट इन एवरीथिंग दैट वी डू इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं वो 30% खुद उसका बिल पे करेंगे, 70 हम पे करेंगे। ताकि हमने सोचा था कि हम एकदम नहीं ख़त्म करें, ताकि एक कैपेसिटी इश्यूज हमारे पब्लिक सेक्टर में आएंगे। फिर हमने ये जो फंड्स हैं, अब 140 बिलियन को हम आस्ता आस्ता कुछ कम किए। फिर हमने इसमें एग्जेम्पशंस पेश की, लाइक डायलिसिस इज स्टिल फ्री प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, क्योंकि दैट इज़ ए लाइफ लाइन ऑफ सम पीपल। इसी तरह हमने इमरजेंसी और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो उस विंडो में आ जाते हैं जो हमने डिफाइन की 12 घंटे 16 घंटे की, कि दे आर टोटली फ्री। लेकिन आपकी इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, अगर आप प्राइवेट में कराएंगे तो 30% आप खुद अपनी जेब से पे करेंगे, 70% उस बिल का हम पे करेंगे। और हमने कहा कि इसको डॉक्यूमेंटेशन इससे होगी कि साइनी में रिकॉर्डिंग होगी और हम रिकॉर्डिंग से एडिट करेंगे। तो इस किस्म की चीज़ें हम लाए। कैंसर का ट्रीटमेंट हमने टोटली फ्री रखा हुआ है, चाहे वो, क्योंकि वहाँ वी डोंट वांट कैंसर ट्रीटमेंट टू बी इंटरप्टेड के अमीर या गरीब के चक्कर में या कुछ, उसको हमने रिस्क नहीं। कुछ इस तरह की 2-4 और भी चीज़ें हमने फ्री रखी हैं। तो इस तरीके से अब जो हमने पैसे बचाए वो हम कहीं और नहीं ले गए, हमने बल्कि उतने पैसों को टॉप अप किया फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, और उनको हमने 109 हॉस्पिटल्स पे इन्वेस्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर एब्सोल्युटली, हर रोज़ हम एक दो इफ्तिताह कर रहे हैं आफ्टर रीवैम्पिंग। मेजर रीवैम्प है, कई हॉस्पिटल्स को हमने बिल्कुल गिरा दिया, लाइक लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल विच वाज डिक्लेयर्ड अनसेफ बाय 3 पार्टीज। इसी तरह बहुत सारे हॉस्पिटल्स को हमने गिरा के बनाया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को रीवैम्प किया। अगर हमने PIC का आप देखें, कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी हमने 200 बेड की कर दी। और अगर आप वो देखें तो मेरा ख्याल है, मैंने बहुत बहुत हॉस्पिटल में यूके में काम किया है, क्वीन एलिजाबेथ में और विलियम हार्वे, एशफोर्ड में, और बहुत। अगर आप वो उसकी, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, डिस्प्ले कीजिएगा, यू विल सी कि उसका स्टेटस तकरीबन आपके मिलता जुलता है। ऑब्वियसली बाथरूम्स का देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और गैसेस की सप्लाई देखें, इमरजेंसी में देखें, उसकी पूरी सर्कुलेशन। और फरकत आलमगीर को उसको चेयरमैन लगाया, हु वर्कड ऑल हिज लाइफ इन यूके। तो वही स्टैंडर्ड, वही, और वो इट डजंट लुक लाइक रियली एनी मोर ए पाकिस्तानी हॉस्पिटल, इट लुक्स यूके या US का हॉस्पिटल नाउ, एंड इट इज़ फुली फंक्शनल नाउ। वी आर आउट ऑफ दिस इन द रीवैम्प। इसी तरह हमने एक्सपेंशन की बेड्स की इमरजेंसीज में, क्योंकि वहाँ पे एक बेड पे 4-4 थे, और इस किस्म के आई कांट अश्योर यू कि एक बेड पे 2 नहीं होंगे, बिकॉज आर पॉलिसी इज नॉट टू पुट अप के जी हाउसफुल है आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं, लोग फुटपाथ पे मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने वो पॉलिसी अभी तक नहीं अपनाई कि हम हाउसफुल कह दें। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल की अगर आप इमरजेंसी मुल्तान की देखें तो यू विल बी सरप्राइज
चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर विल ओपन द न्यू इमरजेंसी इन अबाउट ए वीक्स टाइम। मैं उसको खुद अभी आज वहीं से आ रहा हूँ। तो इस किस्म के आप बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल देखें, आप निश्चित। फिर हमने बहुत सारा पैसा लगाया। मसलन 2007 से एक हॉस्पिटल शुरू होना था, जो वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब ने संगे बुनियाद रखा 2007 में, जुबली टाउन में। इट्स ह्यूज हॉस्पिटल। तो वो क्योंकि उनके बोर्ड लगा था तो अगली गवर्नमेंट ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तीसरी, वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल, हमने ना इलेक्शन लड़ना है ना कुछ। हम अन अन जो हमारे अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो बड़े रैपिडली हम ले रहे हैं। हमने ये किया कि उनको सबसे पहले हमने कहा जो सिख प्रोजेक्ट्स हैं, और 19 के करीब थे, उन सबको अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल 100% आप देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट। इसी तरह अगर आप जो मुल्तान में निश्तर 2, ये भी कुछ 12 साल से बना था, फिर रुक गया था, उसको वो फुली फंक्शनल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, ब्यूटीफुल हॉस्पिटल, यू विल सी अगर आप लोग आएंगे। इसी तरह डीजी खान में एक कार्डिक सेंटर था, उसका नाम रख दिया गया था किसी पॉलिटिशियन के नाम पे, वो भी बंद हुआ हुआ था। तो वो डीजी खान का इस हफ्ते हम जा रहे हैं इफ्तिताह करने, कार्डिक सेंटर का। इसी तरह मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का फिर नाम का ही मसला था, लोग अपने नाम पे रख देते हैं बाद में। तो हमने किसी को अपने नाम पे नहीं रखा, हमने उसका जो भी नाम था उसको नहीं बदल रहे। उसको भी हमने कुछ तकरीबन डबल दी कैपेसिटी, उधर 2 टावर्स बना दिए हैं, और उसके एंजियोग्राफी मशीन्स भी हमने इंक्रीज कर दी हैं, स्वीट्स भी इंक्रीज कर दी हैं। वजीराबाद इंस्टीट्यूट, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट। अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने यूएचआई का ही अभी तो रखा है, तो मैं इसी के तो हमने जितना पैसा उधर से बचाया वो हमने हॉस्पिटल्स पे लगाया, इन्हीं 109 हॉस्पिटल्स पे। और हमारा ये ख्याल था कि इन हॉस्पिटल्स में हम लोग नहीं जाते, अमीर लोग नहीं जाते, ये गरीबों से गरीब तर जाता है। ड्राइवर्स बेचारे बिल्कुल रेड़ी पान, और ये वो, वी वांट देम टू हैव ए गुड एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, ताकि उनको बिल्कुल देखना भी ना पड़े किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ। कोई प्राइवेट सेक्टर, अब मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन, दे कैनॉट कंपेयर विद पब्लिक सेक्टर, जो रिवैम्प्ड पब्लिक सेक्टर है। यस, पहले वहां बहुत मसाइल थे। इसके साथ ही हमने नर्सेज डबल की, हमारी प्रोडक्शन, हम 3700 नर्सेज बना रहे थे, अब हम 7000 बना रहे हैं। फिर इसके साथ ही हमने नर्सेज को और पैरामेडिकल को और डॉक्टर्स की सैलरीज भी रिव्यू की। इसके साथ आपको खुशी होगी कि हमने जो रीवैम्प किया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, हमने डॉक्टर्स के ऑफिस बनाए, उनके टॉयलेट्स बनाए, उनके रिलैक्स लाइब्रेरीज बनाई, उनके हॉस्टल्स को रीवैम्प किया, ताकि ह्यूमन रिसोर्स अच्छी होगी तो वो साथ चलेगा। फिर इसी के साथ ही हमने बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज ए सपोर्टिव, जो चाहे अब कार्डियोलॉजी थी तो हमने जहाँ जहाँ कार्डियोलॉजी थी, मेरा ये ख्वाहिश थी और ये मेरी ख्वाहिश थी, ऑब्वियसली बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट ज़रूर बनना चाहिए। वो भी हमने 2 कर दिए शुरू, क्योंकि आप कितनी मर्जी कर लें, जब तक आप प्रिवेंट नहीं करेंगे आप क्योरेटिव साइड पे फेल होते जाएंगे। तो इसलिए हमने इस तरह हमने काफ़ी पैसा जो उधर से बचाया वो इन चीज़ों पे लगाया। So thank you. I think that's all what I need to say about प्राइमरी। अगर आप ज़्यादा दें तो मैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इसी में कवर कर देता हूँ जो जी, एक आप। मिनट। मेरा ख्याल है कि यूं करते हैं जावेद साहब के इसके थोड़ा सा समराइज करते हैं, उसके बारे में पैनल से पूछते हैं कि आपसे कोई डिस्कशन करना चाहे, फिर विल गो ऑन टू प्राइमरी पीसीआई। तो आपने जो बातें की, मेनली आपने सेहत कार्ड के बारे में जो मसाइल बताए, और आपने कहा कि उसके बजट का भी एक मसला था, और आपने उसका टीयर्ड सिस्टम बना दिया कि कुछ लोग जो कि अफोर्डिंग हैं वो एटलीस्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट पे करेंगे, और इंश्योरेंस भी वो करवा सकते हैं, जबकि जो बिल्कुल इंडिजेंट हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उनकी इंश्योरेंस। फिर आपने जिक्र किया मैल प्रैक्टिस का, कि वो प्रोसीजर्स किए जा रहे थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और जिसमें कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड ज़्यादा था लेकिन क्लिनिकल नीड मौजूद नहीं थी, उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है। फिर आपने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कोशिश की है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ वही लोग काम कर सकेंगे और सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे जो कि एडिक्वेटली क्वालिफाइड है, और उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं।
आपने ये भी जिक्र किया कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनको बनाया गया है, नए हॉस्पिटल भी रिफर्बिश भी किए गए हैं और उनको फैसिलिटीज़ के लिहाज से एनहांस भी किया गया है, और आपने ये चैलेंज किया है कि जो नए अस्पताल बने हैं वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ के मुकाबले में बेहतर हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, एक तो आपका जनरल इम्प्रेशन कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं आपके ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर कि हम अपनी सारी आबादी को यूनिवर्सली हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पे फ्री हो, लेकिन वो अफोर्डेबल हो और ऐसा ना हो कि जिन लोगों को कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़े और वो इम्पॉवरिश हो जाए या वो हार्डशिप फेस करें। एक तो ये बात बताइए कि ये कितना सस्टेनेबल होगा आपके ख्याल में और क्या ये फीजिबल रहेगा? देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने दो चीज़ें देखी कि हमारा पाकिस्तान को, आपको भी उतना ही पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर लोग हैं और फिर बहुत गरीब लोग हैं। बहुत गरीब लोग वो हैं जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जिप्सीज हैं, और हमने उनको टारगेट किया है कि उनको हम बेहतर दें। अमीर लोग को तो मिल ही जाती है, वो दे ट्रेवल टू अब्रॉड, दे ट्रेवल हेयर एंड देयर एंड दे उनको छोड़ दें, उनको हमने, वी आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। और हमने फिर डिजीज देखी हैं कि जैसे इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, मल्टीपल ड्रग XDR, हमने वो डिजीजेस, डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है किडनी का, उसके बाद ये चीज़ें हमने, और लिवर ट्रांसप्लांट है, ये चीज़ें हमने गरीबों के लिए टोटली फ्री की हैं, वन वे और दी अदर। चाहे हमने PKLI को कहा है कि आप, हमारा सबसे महंगा हॉस्पिटल हमारा पाकिस्तान में इस वक्त PKLI है, जो उस वक्त, इस वक्त अगर वो बनेगा तो कम से कम 80 अरब रुपए का बनेगा। उस वक्त भी वो 30 अरब रुपए का बना था। बहुत एक्सपेंसिव एंड स्टेट ऑफ द आर्ट JCI। ओके, तो इसका, उसका, लेकिन उसका हम सिर्फ अमीरों के लिए क्यों करें? हमने उधर बिल्कुल डिफरेंट किया हुआ है। हमने कहा यार, गरीब को आप बिल्कुल जीरो पे करोगे। और अभी एक हमने वहाँ कैडावेरिक ट्रांसप्लांट्स कराए, औरत ने हमें मरने से पहले अपनी वसीयत कर गई। तो उसके हमने पिंडी में टीम मैंने ही भेजी, जाके वो दोनों किडनी और लिवर लेके आई, और हमने बिल्कुल उन लोगों के किए जो बिल्कुल गुर्बत से मारे हुए थे और डायलिसिस पे थे, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे थे इसमें लिवर में, तो उनके कर दिए बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमने हॉस्पिटल्स में भी की हुई हैं, लेकिन हमने हेल्थ कार्ड में भी यही ये किया हुआ है कि जो गरीब है उसको बिल्कुल अनअबेटेड। लेकिन कुछ बीमारियों में हमने एग्जेम्पशन क्रिएट किया है, बिकॉज हम अमीरी गरीबी के चक्कर में ये ना हो कि वो डायलिसिस का चक्कर, क्योंकि जाहिर है ट्राइज करने में थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा। हमने कहा जी डायलिसिस अनअबेटेड चलता रहे, उसको मत रोको। और इसी तरह कैंसर की ट्रीटमेंट, उनकी कीमोथेरेपी को मत रोको, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फिर पंजाब का सबसे बड़ा मसला ये था कि अपना पंजाब गवर्नमेंट का कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। हमने मनावा में अब कैंसर हॉस्पिटल बना के किंग एडवर्ड के साथ अटैच कर दिया है। 140 बेड का है मनावा में। वहाँ एक हमारा हॉस्पिटल था जिसको हमने कैंसर हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह एक जुबली टाउन में ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इंडस का, जो हम उनको कह रहे हैं कि आप हमें दे दें, हम इसको 500 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। वो अभी उन्होंने कमिट नहीं किया, इसलिए वो मैं आपको श्योरली नहीं कह सकता। वो वंस दे हैव अग्रीड टू गिव इट टू अस, मगर उनके बोर्ड शोर्ड में वो काम है। तो देन ये जो चीज़ें हैं, लेकिन हम, बिलीव मी, कि वी आर ओनली ओनली इंटरेस्टेड एज केयर टेकर कि हम गरीबों की लाइफ में कुछ चीज़ ले आएं। अमीरों को मैं आपको कह रहा हूं कि वो दे मैनेज समहाउ। तो इसलिए हमारा ये यही सूरत हाल है कि हम ये कर रहे हैं कि इस तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू। एक जो सवाल यहाँ पैदा होता है मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद आई विल ओपन द क्वेश्चंस टू द पैनल। वो सवाल ये है कि आपका मैंडेट जो है वो केयर टेकर का है, और वो ये है कि आप उस दौरान हुकूमत चलाएं जब तक कि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती। तो होता यह है कि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी फर्क होती हैं, क्योंकि दे हैव टू कीप एन आई ऑन देयर वोट बैंक। जबकि आप क्लिनिशियन हैं, आप ज़ाहिर है कि इन्स एंड आउट्स ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर को और प्राइमरी केयर को समझते हैं, और आप की प्रायोरिटीज थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि फ़र्क होंगी बनिस्बत जो
पॉलिटिकल हेल्थ मिनिस्टर होगा। तो आपके ख्याल में ये फ़र्क मैटर करता है नहीं, और क्या ये नहीं होगा कि कल जब नई हुकूमत आ जाएगी तो ये सारी जो आपने चेंजेस की हैं दे विल बी रिवर्स्ड, या ये सस्टेनेबल होंगी? वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, ये मेरा भी यही आइडिया था। नंबर एक तो देखें, बिलीव मी, आप हमें इलेक्शन लड़ते हुए नहीं देखेंगे कभी भी। वी आर नॉट डूइंग इट फॉर कि अपनी पॉपुलैरिटी की खातिर। वी डोंट नीड पॉपुलैरिटी। वी हैव मेड सो मैनी अनपॉपुलर डिसीजंस कि आप सोच नहीं सकते। बिलीव मी, पॉलिटिशियंस इसीलिए हमसे खुश नहीं हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस किए विच इज़ हिटिंग दैम। दूसरे तीसरे नंबर पे हम कोशिश, ये हमारा मैंडेट भी नहीं था। वी हैव एक्सीडेड आवर मैंडेट। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये हमारा काम नहीं था जो हम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि कुछ अगर हम बेहतरी अपना हिस्सा डाल सकते हैं कहीं पे भी। थानों में डाला, थानों में मैंने तो नहीं डाला जी, ज़ाहिर है दूसरे मिनिस्टर्स ने डाला। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरांवाले को हमने मोटरवे से कनेक्ट किया, वजीराबाद को किया, वो शहर जो नहीं कनेक्ट हो रहे थे। हमने कोई तकरीबन कुछ 18,000 किलोमीटर नई रोड्स भी बनाई हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने हेल्थ में प्राइमरी फोकस इज पीपल लिविंग बिलो दैट पॉवर्टी लाइन। अब जो इसमें हमने बजट में इस किस्म का किया है कि हमने मेंटेनेंस का, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगी तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, जितना हमने पैसा लगाया ये जीरो पे हो जाएगा आफ्टर 5-10 ईयर्स। जो हमने मशीन्स नहीं ली, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोड़ के तहसील हॉस्पिटल तक सीटी स्कैन ले गए हैं हम, एमआरआईज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक ले गए, हम एंजियोग्राफीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ले गए हैं, क्योंकि दैट इज गोइंग टू सपोर्ट आर प्राइमरी केयर, प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज या ड्रिप एंड शिफ्ट जो हमने शुरू किया। तो हमने काफ़ी इसको थॉट ऑफ किया। फिर हमने इसमें बजट ज़रूर रखा है ऑफ मेंटेनेंस। अब वो उसको नल एंड वॉइड कर दें, यस दे कैन, दैट रिस्क इज देयर एंड वी कांट डू मच अबाउट इट। वी विल ट्राई कि वो रिस्क नहीं, कम से कम करें। जाहिर है इन चीज़ों को अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा, जेनिटोरियल्स का भी हमने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्स बना दिया है कि हमने वर्किंग इस पे की है। जो मेरा आइडिया था, मैंने कहा था हमारे डॉक्टर्स नर्सेज को कोर सर्विसेज पे रहने दें, नॉन कोर सर्विसेज को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आप बिल्कुल छोड़ दें, चाहे वो सिक्योरिटी है चाहे वो लॉन्ड्री है। ये कोर्स कोर है ही नहीं है हमारा, ना हम एक्सपर्टीज हैं, या हॉर्टिकल्चर है या जेनिटोरियल है। ये आप बिल्कुल अलहदा कर दें और इनको आप ट्रांसपेरेंट तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि ये लोग, ये कंपनी बिड कर सकती हैं और वो आए, और उनको मॉनिटर कैसे करना है। सो वी हैव डन दैट थिंग एंड वी हैव केप्ट इनफ मनी इन द बजट फॉर मेंटेनेंस ऑफ दीज। अब वो अनडू कर दें तो ऑब्वियसली दैट डेंजर इज देयर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सो दी अच्छा, मैं जी क्योंकि इधर ना मगरिब हो गई है और ख़त्म होने वाला टाइम, इफ़ यू अलाउ मी आई जस्ट से जी माय प्रेयर इन अबाउट 3-4-5 मिनट्स एंड देन आई ठीक, रीड। मैं इस मैं ऑनलाइन ही रहूंगा, बट आई जस्ट से माय प्रेयर इफ यू अलाउ मी। जी बिल्कुल ठीक है, यू गो अहेड एंड इन द मेनवाइल विल डिस्कस अमंग आवरसेल्व्स। जैसे आप रीजॉइन करेंगे विल रीस्टार्ट। डिस्कस कर लें एंड देन आई टेक द क्वेश्चन इन अबाउट जी 3-4 मिनट्स। थैंक यू। जी थैंक यू जी। जी तो आई थिंक वी कैन कैरी ऑन डिस्कशन। आप में से कोई लोग कमेंट करना चाहेंगे सेहत कार्ड के बारे में, और जो प्रॉब्लम्स डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किए हैं, और आपके अपने क्या ख्याल आता है? आप यू कैन रेज योर हैंड इफ यू गॉट वीडियो ऑन, ताकि हम बात कर सकें। जी वर्दा, वर्दा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं ख्याल यू आर ऑन म्यूट। वर्दा, इफ यू कैन हियर मी यू हैव टू अनम्यूट फर्स्ट। You are still on Okay, mute. जी I आप think I've done that. Nahin, जी first of all, Dr. Atta, this is really a good lecture. I think it's a good opportunity कि minister साहब से directly हमें बहुत कुछ, I think सेहत कार्ड was one issue which I always thought कि ये पाकिस्तान में शुरू तो किया है, अब इसका आगे कैसे होगा. And I think he very rightly pointed this thing out, and this was a concern कि ये normal deliveries छोड़ के जो gynecologists and the doctors were doing more of the C-sections because they were getting more money out of it. मगर इस सारी चीज के बावजूद सेहत कार्ड जो है वो मैं समझती हूँ कि that is the way forward.
स्पेशली हमारे मुल्क में, जहाँ पे इन्होंने एक लोअर क्लास की तो बात की, एक अपर क्लास की भी बात की, पिस्ती सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है जो ना किसी से मांग सकती है पैसे, ना कुछ कर सकती है। लोअर क्लास तो फिर जाके कहते हैं अच्छा जी हमें मदद की जरूरत है, कोई मदद कर दे। जो मिडिल क्लास है उनके पास ना इतने पैसे हैं कि वो प्राइवेट केयर अफोर्ड कर सकें। जनरल अस्पतालों में जब तक चीजें बेहतर नहीं होती उनके लिए आसानी नहीं है। और ये अब आई एम नॉट श्योर, ये इन्होंने जिक्र किया डायलिसिस का कि वो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। डायलिसिस पे जहां तक मुझे याद है जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें ये था कि डायलिसिस को इन्होंने उस पे कर दिया था, देयर वर सम चार्जेस टू बी पेड फॉर डायलिसिस। तो जी, उन्होंने करेक्शन की है कि डायलिसिस इज कम्प्लीटली फ्री। हाँ खैर उनसे उन्होंने आप कहा दोबारा भी है। पूछ सकते हैं। आपका सही कहना है, मेरा ख्याल है आप ये कह रही हैं कि जो सेहत कार्ड इज द वे फॉरवर्ड। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि दुनिया के कुछ मुल्कों ने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। हमारा मॉडल जो है वो टर्की का है। हम्म, टर्की ने एक्चुअली बहुत सक्सेसफुली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर की है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस जो कि वो ऑफर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, विद हम्म, सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। ऑन द अदर हैंड एक और मॉडल है इंडिया का, जहाँ पे कि उन्होंने इससे मिलता जुलता सिस्टम शुरू किया था जो कि हम कर रहे हैं। एंड दे रन इनटू प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जैसा कि जावेद साहब बता रहे थे। और इसमें हम लोग पिछले कुछ सालों से, क्योंकि ये यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एक प्रोफेसर साहब हैं जिष्णु दास जो कि जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में हैं वाशिंगटन में। उन्होंने 3 साल पहले जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट की थी इंडिया के प्रोग्राम में, यू कैन रीप्ले इस वीडियो एंड सी के एग्जैक्टली हरफ बहरफ वही वाली अभी। वही प्रॉब्लम्स हमें पेश आ रही हैं। हम्म, So I think in our society and social and cultural attitudes and behaviors, we are much more similar to India than we are to हम्म, Turkey, and we are kind of facing the same kind of problems. तो उसका जो प्रोफेसर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था, जिष्णु दास साहब का, वो ये था कि बजाय इसके कि हम इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और सेहत कार्ड के ऊपर पैसे लगाएं, हमें जो हुकूमती अस्पताल हैं उनके ऊपर पैसे लगाने चाहिए, उनको जैसे कि बेहतर मैं करना चाहिए। हॉस्पिटल में। ट्रू। और उसके ज़रिए गालिबन उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ज़्यादा आसान है। तो और कोई साहब तबसरा करना चाहेंगे इस बारे में कि हमें क्या सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ को सपोर्ट करें यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए? आसिफ या राजा साहब? अतर भाई, मेरा जो ये जो हेल्थ कार्ड है ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि हमारे इलाके में, क्योंकि मेरा जो एरिया बड़ा रिमोट एरिया है, डिस्ट्रिक्ट जेलम, जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, जमींदार लोग रहते हैं, जिनकी एक्सेस भी नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज तक, तो उनको काफ़ी फायदा हुआ है। लेकिन ये वाकई बात सही है कि जहाँ वो टैक्स जो है ना कल्चर ना हो, तो इसको सस्टेन करना वाकई जो है बड़ा चैलेंजिंग है। तो वहाँ पे अगर जो है ये जिस तरह वो इंश्योरेंस सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और गवर्नमेंट जो है जो गरीब लोग हैं उनको कुछ सब्सिडी दे, तो इस तरह सारे मुफीद हो सकते हैं। और दूसरा जो आप ने पिछली दफ़ा डिस्कस किया कि हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स अब बहुत बेहतर हो रहे हैं, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा है। मेरे भी जो दोस्त हैं वहाँ पे, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल्स वाकई अब बहुत बेहतर हैं। मेरे एक बड़े एक दोस्त हैं, भाई हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में वो चीफ एग्जेक्टिव हैं। तो वहाँ वाकई ये डायलिसिस फ्री होता है, और लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सही, वेरी नाइस। Atar sir, just one जी तारिक comment. साहब, yeah, go ahead, लेकिन put your video on please. Yeah, I'm in the actually taxi car traveling, but Yeah, it's that's fine. okay. That's Yeah. okay. So basically, I would like to add. I think instead of they're already doing it. The regulatory system needs to improve to utilize the health card. I think it will be if we make, for example, 30% from the patient and 70% from the health card. Still there will be a lot of people who will not be able to pay even 30%, especially coming with heart attack requiring angioplasty and stenting procedure, which is quite an expensive procedure. So instead of
limiting or putting some restrictions, I think it will be important to improve the regulation or regulatory system, which they have done to some extent. I think. जी आप सही कह So रहे हैं for तारिक। example, जी आपका शुक्रिया कमेंट का। तारिक, if you still keep your video on, doesn't matter if you are on your mobile phone. तो जावेद साहब is back और this is just very timely because जावेद साहब हम तारिक से बात कर रहे थे हेल्थ कार्ड के बारे में, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि तारिक इज टॉप क्लास कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इन द यूके एंड डार्बी, और पिछले कुछ साल से वो तारिक साहब लीड कर रहे हैं हमें प्राइमरी पीसीआई के लिए लाहौर में और पंजाब में और पाकिस्तान में जो हमने एफर्ट्स किए हैं उसके बारे में, जो डेटा जमा किया है और जो प्रोग्राम्स किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले जावेद साहब आप ये बताइए कि आपने आते ही जो स्टेप्स लिए थे प्राइमरी पीसीआई के बारे में वो क्या थे और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, और फिर मैं तारिक से और मैं खुद आपसे पूछूंगा कि हम एम्बुलेंस को उसमें इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं। जावेद साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी अभी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिच और पुअर ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में टोटली फ्री है, जो उस टाइम विंडो में उधर रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ जो एंजियोप्लास्टी इलेक्टिव एंजियोप्लास्टीज हैं वो ऑब्वियसली अगर प्राइवेट सेक्टर में कराते हैं तो 30% देना पड़ता है। और देखें, हम ये चाह रहे हैं कि बेसिकली मैं हेल्थ कार्ड ये का मसला ज़रा थोड़ा सा ख़त्म कर दूं कि हमारा जो ख्वाहिश है वो ये है कि हमारे अपने हॉस्पिटल्स पे हम इन्वेस्ट करें और वो ही बिजनेस करें हेल्थ केयर का, हेल्थ कार्ड का। हो क्या रहा था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने राइटली सो ये शुरू तो किया था नवाज शरीफ ने एक्चुअली कार्ड, पीटीआई ने इसको यूनिवर्सल कर दिया कि रिच पुअर सबकी खत्म कर दिया। अच्छा, उसमें उन्होंने जो बिजनेस मॉडल किया था ना, उसमें 40 बिलियन रुपीस उनका ख्याल था कि फिर भी उनके पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल देंगे अर्न करके टुवर्ड्स प्रीमियम। जो 140 अरब रुपए का प्रीमियम था, उनका ख्याल था कि 40 या 50 अरब रुपया हॉस्पिटल्स देंगे सरकारी। और उसके जब हमने टेक ओवर किया, हमने एनालाइज किया कि उन्होंने दिया कितना है, तो उन्होंने सिर्फ 3 अरब दिया था पूरे पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स ने। तो हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ज्यादा बिजनेस करके वो हमारा प्रीमियम में हाथ बटाएं, क्योंकि हम आउट ऑफ द पॉकेट तो देना सस्टेनेबल ही नहीं रहेगा। अगर 150-60 अरब रुपया आपको देना पड़ रहा है तो आप कहाँ से लाएंगे? और पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आएगी, वो भी इसको बंद करेगी। जाहिर है इतना ये दिस इज अबाउट हाफ ऑफ द हेल्थ, मोर देन हाफ ऑफ द हेल्थ बजट। बाकी हाफ हमारी सैलरीज ले जाती हैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचेगा नया करने के लिए। तो इसलिए हमने ये किया। इस वक्त आपको रीवैम्प के बाद आपको बहुत खुशी होगी कि इस वक्त हमारा तकरीबन 30 अरब रुपया हमें गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल दे चुके हैं टुवर्ड्स प्रीमियम। तो दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज के वी टेक अवे दैट बिजनेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, जहां हमारी गवर्नेंस इजी है। हो क्या रहा था, और हमने एक और किया, हमने ऑपरेटर, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं विच इज ऑब्वियसली आप लोग एक फैमिली मेरे लिए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। हो ये रहा था कि पीआईसी के बाहर टैक्सियां खड़ी थी, डॉक्टर जो ऑपरेट कर रहा था, प्रोफेसर असिस्टेंट एसोसिएट, वो ने कहा था यार तुमने मेरे से कराना है ना ये, तो मैं तो रात को 2 बजे तक फारिग नहीं हूँ, तुमने ये कराना है, तुम सामने हॉस्पिटल है वहां चले जाओ, मैं अभी आके कर देता हूँ। उसको एंजियोप्लास्टिक करने का वहां मिल रहा था 40,000 रुपया, पीआईसी में उसको मिल रहा था 3,000। हमने उल्ट कर दिया है, हमने गवर्नमेंट का शेयर 30% कर दिया है, 70% हॉस्पिटल को कहा है वो तो रखे इस बिजनेस का, और सबसे ज्यादा ऑपरेटर को दें। अब उसको इस वक्त प्राइमरी एंजियोप्लास्टी छोड़ दें, कोई भी एंजियोप्लास्टी करने का उसको तकरीबन 40,000 रुपया मिल रहा है। तो इस वक्त हमारा जो बिजनेस स्टील करके जा रहा था, अनएथिकली जा रहा था टुवर्ड्स दी, टैक्सियां खड़ी थी, उनको पैसे दिए जा रहे थे, इधर हंट करके ले आओ प्राइवेट सेक्टर में। तो हम डेफिनेटली हेल्थ कार्ड का हमें जरूरत है इस वक्त भी, लेकिन हेल्थ कार्ड को हम अपना बिजनेस सेंटर क्यों ना बनाएं पब्लिक सेक्टर का, ताकि ये सस्टेनेबल हो। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। नाउ वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि 50% ऑफ दिस प्रीमियम विल बी गिवन बाय आवर ओन हॉस्पिटल, एंड 50% ठीक है
गवर्नमेंट ऊपर से लाएगी तो ये कुछ किसी हद तक चलता रहेगा, सस्टेनेबल होगा, वरना नो फ्यूचर गवर्नमेंट कैन सस्टेन इट। तो वी आर ट्राइंग के जो हम इनकरेज कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल इस काबिल हो जाएं। देखें PIC में इस वक्त 17 एंजियोग्राफीज हमने लगा दी हैं, 17, उसमें EP के लिए अलहदा कर दिया, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के लिए, प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज के लिए 3 हमारी हर वक्त 24 घंटे खुली रहती हैं। ये कौन प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल कर सकेगा? कोई कर सकेगा? कोई रोबोटिक सर्जरी कर सकेगा प्राइवेट हॉस्पिटल? हमने शुरू कराई है, PKLI है या और हम करा रहे हैं 3-4 हॉस्पिटल्स में। कैंसर की ट्रीटमेंट कोई फ्री इस तरह प्राइवेट सेक्टर कर सके? प्राइवेट सेक्टर इज देयर फॉर प्रॉफिट, बट पब्लिक सेक्टर इज नॉट देयर फॉर प्रॉफिट, दे आर देयर फॉर सर्विस। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ये कार्ड मैक्सिमाइज हो, लेकिन मैक्सिमाइज हो टू पुअर पीपल, और वो पुअर पीपल को भी हम कंपेटिटिव हो के, हम उनको फोर्स नहीं कर रहे कि हम इन्फीरियर इलाज नहीं दे रहे हैं, हम बेहतर इलाज दे रहे हैं इन पब्लिक सेक्टर। और हमारा पब्लिक सेक्टर पे इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट हमने की है कि ये हम उनसे वो बिजनेस अरबों रुपए का जो हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, और वो आगे एक्सपैंड करने के लिए हॉस्पिटल को एक्सपैंड नहीं कर रहे, वो शादी घरों को लेके उसमें एंजियोप्लास्टीज एंजियोग्राफी लगा रहे हैं, तो देयर आर एथिकल इश्यूज। तो हम उन इसलिए दैट वाज द रीजन। जी थैंक सर यू मेरा एक और जावेद साहब। पॉइंट एक ये मिनट अच्छा साहब, एक मिनट तारिक साहब, नदीम साहब ने हाथ खड़ा किया है, पहले वो सवाल कर लें, फिर तारिक साहब आपकी तरफ आते हैं। नदीम साहब। थैंक यू वेरी मच अतर भाई। डॉक्टर अकरम, ये जो सवाल नहीं है बल्कि कमेंट ही आप समझ लें कि मैं पिछले 4-5 साल से अतर भाई के साथ और इनकी जो टीम है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वालों के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। स्पेशली हमने मिलके काम किया कोविड के दिनों में। इनका बड़ा जो है ना, इनके साथ एक आप ये कहें कि इज्जत का, एहतराम का और प्यार का रिश्ता है। जो आप कर रहे हैं ये बड़ा ज़बरदस्त, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपके काम से कि जो टेक्निकल बंदा, चूंकि आप इस प्रोफेशन के हैं, जो टेक्निकल बंदा तब्दीलियां ला सकता है, इनकलाब ला सकता है। सही बात है जो कुछ आपने बताया है, तो ये बहुत काबिल तारीफ है। और जो कुछ आप कर रहे हैं इसको जारी रहना चाहिए। उसके लिए देखें, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप का, और हमारी लार्जेस्ट पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी वैलिडेटेड मेंबरशिप जो है वो कल मैंने चेक की थी 2000 जो है 60 है। तो हम एक प्रेशर ग्रुप ही हैं, और हम ये मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बंदा इस मेरे साथ इत्तेफाक करेगा कि हम एज अ प्रेशर ग्रुप, हम जो भी नई गवर्नमेंट आए पाकिस्तान पंजाब की खास तौर पर, उनको कहें जी कि देखें आप ठीक है, आप सियासतदान हैं, आपके अपने वो प्रायोरिटीज होती है। जिस तरह अतर भाई ने कहा है कि आप कभी एक अनपढ़ को एजुकेशन मिनिस्टर लगा लेते हैं, तो इस दफा आप इस तरह करें कि जो है ना, ये कंटिन्यूटी रहे, तो आप टेक्निकल बंदे को हेल्थ मिनिस्टर लगाएं, ताकि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये जारी रहे। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब आप नमाज पढ़ने गए थे तो मैंने अतर भाई को और बाकी दोस्तों को बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट जेलम का एक बड़ा दूर उफ्तादा गांव है, रिमोट एरिया है, और वहाँ पर जमींदार लोग हैं और बड़े गरीब हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं। और जो आपने कहा है कि तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो मैं खुद जाके मैंने विटनेस की हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब आपका टेन्योर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का ख़त्म होगा, तो हम चाहेंगे कि आप उनके साथ मिल के काम करते रहें। बेशक आप इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे, आप एज अ एडवाइज़र उनके साथ काम करें और उनको गाइडेंस देते रहें, और ये सारा कुछ जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। मेरा ख्याल है आप तारिक कमेंट करना चाहते हैं प्राइमरी PCI के बारे में, और बात करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब से। तारिक अजीम साहब। जो वैसा पहले तो मैंने आपका पूरा वो सुना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी
मेरी कंग्रेचुलेशन कि आपने ये बड़ा जबरदस्त जो है ना इसमें इंटरेस्ट लेके एक काम तो शुरू किया है, और इंशाल्लाह हम आगे मिलके सारा इसको और भी इम्प्रूव करेंगे। मेरे दो चीजें हैं जिनमें आई वुड लाइक टू एक्चुअली स्ट्रेस। एक चीज ये है कि ये हमें एंजियोप्लास्टी सर्विस को और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सर्विस को डिवॉल्व करना है, और वहाँ DHQ हॉस्पिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर में तो ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, ऑल्दो लाहौर में भी वी नीड्स टू डू अ लॉट मोर टू इम्प्रूव इट। लेकिन कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल गुजरांवाला, शेखपुरा या सियालकोट से, दे शुड नॉट कम टू लाहौर टू हैव प्राइमरी PCI. Number one, I think we are not there as yet, and it will take quite a long time to achieve this. So in the meanwhile, I would also like to stress the importance of community thrombolysis, which, for example, if you thrombolize a patient within 60 minutes, the vessel patency rate is more than 70%. तो वो उस पे भी अतर साहब ने मुझे बताया था कि you are doing grip and ship sort of program, which is quite encouraging. But मेरा ख्याल ये है कि we are just seeing the tip of the iceberg. Hospitals, ज़्यादातर तो बेचारे वो patients, double 1, double 2 will be a very small number of patients. A lot of them actually they die, and a lot of them they even don't know. तो उसमें हमें एक तो पब्लिक एजुकेशन, फॉर एग्जांपल मीडिया पे कि हार्ट अटैक क्या है, बसों पे स्टार लगा दें, जैसे लोगों को चेस्ट पैन, वी कैन सेव लॉट ऑफ लाइव्स देयर। फिर उसके बाद टू इक्विप द एम्बुलेंसेस, डबल 1, डबल 2 जो है, इनको इक्विप करें ECG मशीनों से, DFib से, और इनमें ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स भी रखते हैं। It was achieved. Derbyshire was the first county in UK where we actually started the community thrombolysis, and we trained the ambulance people to read the ECG. They had the thrombolytic agents, tenecteplase, or RTPA, double bolus injection. So they used to give in the community. Or a lot of time when the patients were coming to the hospital, they already had resolved chest pain and resolved ECG changes. थैंक यू तारिक। मेरा ख्याल है कि आपका पॉइंट समझ में आ गया। मेरा ख्याल है जावेद साहब, तारिक ने बेसिकली जो पॉइंट रेस किया है वो ये है कम्युनिटी थ्रोम्बोलिसिस के बारे में, और आप जो ट्रिप एंड शिप कर रहे हैं। जी सर, जी जावेद साहब। ग्राउंड रियलिटीज बता दूं। देखें, जिस दिन हमने ओथ लेना था, दैट वाज ए सैटरडे, और सैटरडे को हमें कहा गया कि आप फौरन पहुंचे ओथ लें गवर्नर हाउस में। तो हम 12 बजे, 11:30 बजे रात को पहुंचे, और हमने 1 बजे सुबह ओथ लिया, बिकॉज वो उसमें कुछ कोर्ट का मसला था। तो क्योंकि उधर सारे लोग मौजूद थे, सेक्रेटरी हेल्थ और बाकी मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, तो मैंने ओथ लेते साथ ही वहाँ कह दिया कि जी सुबह एक मीटिंग होगी 10 बजे, सेक्रेटरी हेल्थ को कहा, और इसमें तमाम कार्डियोलॉजी के जितने हमारे यूनिट्स हैं उनके एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, चीफ एग्जेक्टिव, वाइस चांसलर फिजिकली होंगे या ऑनलाइन होंगे, चाहे वो DG खान में है, चाहे वो मुल्तान में है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या एजेंडा है? मैंने कहा जी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, और 7 सैटेलाइट सेंटर्स ऑफ दीज। तो हमने अगले दिन 10 बजे मीटिंग की, जिसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आया कि आप सोच नहीं सकते। They said कि we are overwhelmed with work, we cannot afford and this and that, it cannot। तो मैंने अपने कोलीग्स को कहा अच्छा फ़ायदा ये है कि मोस्टली मेरे शागिर्द भी हैं सारे लोग। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो तुम क्या डिस्कस कर रहे हो, ये तो मैंने सुबह 1 बजे रात को अर्ली सुबह AM ये फैसला हो गया था कि इसने होना है, और होना भी मंडे से है, कल से। तो ये इसको कोई फायदा नहीं आप डिस्कस करने का, इट इज़ ऑलरेडी डन। अब आप ये बताएं आपको चाहिए क्या कुछ, आप बस हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है। एंड दे वर शॉक्ड, दे सेड कि ये नहीं हो सकेगा कभी भी। बहुत बड़े बड़े नामों ने कहा कि ये नहीं आप कर सकेंगे, ये तो भी बहुत मुल्कों ने नहीं किया। मैंने कहा देखो मैं चाहता हूं कि 2023 वाली कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस हो, 1990 वाली ना हो जो आप कर रहे हो। तो खैर एनी हाउ बहुत रेजिस्टेंस के बाद हो गया। उसके साथ हमने जो तारिक साहब कह रहे हैं, हमने सैटेलाइट सेंटर इस वक्त PIC के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 19 सेंटर्स हैं,
यानी यकी गेट में भी है, जो छोटे छोटे हमारे यूनिट्स हैं वहाँ कार्डियोलॉजी का ही इन्हीं का ही स्टाफ है मौजूद। और वहाँ एम्बुलेंसेज जो 11 को कार्डियक एम्बुलेंसेज विद डीफिप्स वो मौजूद हैं। और वहाँ अगर हम वहीं से ट्रॉपटी वगैरह सारा करके ट्राइजिंग वहाँ से प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए अगर शिफ्ट होना है तो हो। लेकिन जो तहसील हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे एंजियोग्राफी अभी नहीं लगी, हमारा काम में ये है कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा रहे हैं इस वक्त एंजियोग्राफीज, लेकिन नहीं लगी, हम उनको ड्रिप एंड शिफ्ट कहते हैं कि उनको थ्रोम्बोलाइसिस करके फौरी तौर पे हम शिफ्ट कर दें। उसकी टाइम विंडो हमने 24 आवर की रखी हुई है कि 24 आवर में, बाकियों की 12 घंटे रखी है। नीडल टू डोर टू नीडल टाइम हमने सबका 40 मिनट्स रखा हुआ है। और उनकी रिहर्सल करा करा के और फिर उनकी जब एंजियोप्लास्टी करते हैं ताकि मिस यूज ना हो, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक, उनकी वो सीनी जो है उसको उनको हमने सॉफ्टवेयर बना दिया है कि वो सीनी उसकी एक थोड़ी सी लेते हैं कि ये लियन है, ये टाइम चेस्ट पेन ऑनसेट का अब तक ये टाइम है, और ये उन्होंने स्टेंट डाल दी और पोस्ट स्टेंट भी सक्सेस है नहीं है वो हमें भेजते हैं। एंड दैट वी कीप ऑन एडिटिंग एवरी डे, दैट देयर इज अ पोर्टल, हम आपको एक्सेस भी दे सकते हैं उस पोर्टल की ताकि उनकी क्वालिटी भी मॉनिटर कर सकें। इसी तरह हम जो बाकी जो नॉन कार्डियक होते हैं उनको वहीं से फारिग कर देते हैं, लेकिन ये सारा कुछ होता सेंट्रली पीआईसी के अंडर है, उनके थ्रू कर रहे हैं। इसी तरह मुल्तान में भी हमने सैटेलाइट क्लिनिक्स बना दी हैं इनकी, हर जगह पे हम बहुत सारी सैटेलाइट क्लिनिक्स कार्डियक सेंटर्स के साथ लगा रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं आपके कि हमने स्ट्रोक की भी विंडो कर दी है, टीपीए और साथ उसकी भी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, चाहे वो एक्स्ट्रा करोटिड है, इंट्रा कहीं भी है, कोई भी है लियन, अगर वो अमीनेबल है तो हमने कुछ सेंटर्स में, लेकिन हमने की कार्डियक सेंटर्स में है, हम उनके लिए अलहदा नहीं एंजियोप्लास्टीज के लिए हमने न्यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग करा रहे हैं कि वो स्ट्रोक में भी यही करें। स्ट्रोक में ऑब्वियसली टीपीए देनी चाहिए, वो बहुत महंगी हो गई है बिकॉज इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें। तो लेकिन जो सिलेक्टेड टाइम विंडो हमने 6 आवर्स तक उसकी की है, 4 आवर्स प्रेफरेबली, लेकिन 6 आवर्स अगर खींच सकते हैं तो खींच लें, लेकिन उनको टीपीए लगाएं और उनको भी उस जगह शिफ्ट करें। अभी हमने पहली एंजियोग्राफी मशीन लगाई है जो बायप्लेन है, बाकी सिंगल प्लेन है कार्डियक के लिए, हमने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में लगा दी है एंड दैट फंक्शनल 24/7। सो लाहौर इज कवर्ड, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी भी जगह पे रावलपिंडी इज ऑलरेडी डूइंग इट, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी फॉर करोटिड्स वगैरह। तो इसलिए स्ट्रोक में ऑब्वियसली वी आर वेरी वेरी कीन कि इसको भी अब हम उस तरफ चल पड़े हैं। कार्डियक में हम इट इज नाउ, बिलीव मी, इट इज अ रूटीन मैटर। अब प्राइवेट सेक्टर ने भी हमें देख के करनी शुरू कर दी है, जो बहुत अच्छी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हम पे करते हैं। हम कह रहे हैं कि जहां हमने कई शहर ऐसे हैं जहां पे अभी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी मशीन, फॉर एग्जांपल सियालकोट में हमने प्राइवेट सेक्टर से ले ली हुई है कि यार आप करते जाओ, होनी उस टाइम विंडो में चाहिए, अब्यूज नहीं होना चाहिए, वो करे, हम उसको पे करते हैं फुल विदाउट एनी क्वेश्चन आस्किंग। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। मेरा ख्याल है कि आसिफ खान साहब का कमेंट या सवाल वुड बी वेलकम। जैसे मैंने अर्ज किया कि आसिफ खान इज already a very established international cardiologist, and he's been involved in pursuing the agenda of primary angioplasty in Lahore in Pakistan. Asif Khan sir. Thank you very much, Atar bhai, and Assalamu alaikum, Javed Akram sahab, been your student in 2003, and I think हमने केमका यूके के फोरम से आई थिंक 2 साल पहले भी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी पे टॉक की थी, मैडम यास्मीन राशिद थी उस हेल्थ मिनिस्टर, और आई थिंक उस टाइम पे भी हमने रेस्क्यू 1122 के साथ यही इन्हीं एस्पेक्ट्स पे बात की थी। एंड आई एम रियली ग्लैड टू हियर कि सिंस यू स्टार्टेड एटलीस्ट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी with your supervision, and Farkad Alamgir Saab at least has kicked off in Lahore and it's working hopefully very well. क्योंकि उससे पहले जो मेरी फीडबैक थी, क्योंकि मेरे 2-3 कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट कोलीग्स हैं जो यूके से लाहौर में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो यही थी कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में ऑपरेटर को इतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए,
and that was something maybe causing either abuse of service in private sector or not. I'm not, which you know better on the ground. But at least if you're working on those line, or auditing is very important, जो आप उस पे कह रहे हैं कि daily basis पे हो रहा है, I think that will help a lot. I think the other thing which I feel के जो stent companies हैं, इनके साथ भी अगर बल्क में परचेजिंग आई बिलीव हो रही है तो दैट विल हेल्प, क्योंकि एनएचएस में भी हमने स्टेंट की कॉस्ट को कम इस तरह से किया है कि हम बल्क में एक या दो कंपनीज को एक सेंटर ओन कर लेता है कि हमने इनसे ही लेनी है। तो इवन जो स्टेंट पहले 250 या 300 पाउंड का होता था, उसको हम लेस देन 200 पाउंड पे ले आए हुए हैं, और वही बल्क परचेजिंग वैसे, क्योंकि आजकल जितने भी थर्ड जनरेशन स्टैंड्स हैं दे ऑलमोस्ट आर सेम, देयर इज नन ऑफ देम के कोएंसिस्टेंट ज़्यादा अच्छा है। एक दो प्रॉपर्टीज हर स्टैंड की डिफरेंट हैं जो कि वो मार्केट करते हैं, लेकिन मोर और लेस दे वर्क द सेम, एंड रेट ऑफ स्टेंट थ्रोम्बोसिस हैव गॉन डाउन लेस देन 1%। और ओनली थिंग which Pakistan need to do work is on use of antiplatelets, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो एशियन पॉपुलेशन है उनमें एंटी प्लेटलेट्स की एब्जॉर्प्शन यूरोपियन पॉपुलेशन से डिफरेंट है। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में एंटी प्लेटलेट्स की यूज़ अभी भी वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की नहीं हो रही जो लेटेस्ट एंटी प्लेटलेट्स हैं, जो कि होनी चाहिए। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दोज एंटी प्लेटलेट विच वर यूज इन in 2010. So I think that is something also need to look at after angioplasty and secondary prevention care, naturally diabetic and those things, which another aspect. And the only one more comment before I finish is the cardiac rehab. We don't have PCI हम कर देंगे, लेकिन उसका जो पॉसिबल rehab और follow up है उसके लिए I believe कि PIC में कोई ऐसे clinics और specialist nurses को train किया जाए, या मेडिकल ऑफिसर्स ऐसे हों कि जो पोस्ट PCI क्लिनिक और उनके rehab पे काम करें पेशेंट्स के। थैंक यू। देखें इस तारिक, थैंक यू सो मच। एक चीज़ है कि वन से टीचर इज ऑलवेज ए टीचर, सो ये मैं आपका टीचर रह नहीं चुका हूँ, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कॉल है, जिसने एक लफ्ज़ पढ़ाया मैं उसका गुलाम हो गया और सारी उम्र के लिए हो गया। तो ये एक हमारी लेगेसी है, बीइंग टीचर एंड स्टूडेंट्स, दैट वी ऑलवेज वैल्यू। दूसरे जो आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, तो इसीलिए हमने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जहाँ पे हमें फैकल्टी तो नहीं मिल रही। उसमें बहुत मुझे चैलेंज था कि हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस एज ए करियर। सो मैंने पब्लिक हेल्थ के लोगों को कार्डियोलॉजी सिखा के उनको उनका हेड बनाया है अब प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का, बिकॉज दे नो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज अगर कुछ। और हमने ये अब एक तरह से ये कर दिया है कि अगर मरीज कहता है कि वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो वी डोंट पुट ए स्टेंट इनटू देम दैट। बाद में वो क्या करता है, लेकिन एटलीस्ट उसको हम कहते हैं कि यार फायदा कोई नहीं आपको हमें स्टेंट लगाने का, कि ये ब्लॉक ये भी हो जाना है और बाकी नेटिव आर्टरीज भी आपकी ब्लॉक हो जानी है। तो इसलिए हम जो, जहाँ तक आपका एंटी प्लेटलेट्स का है, मैं खुद पाकिस्तान एस्पिरिन फाउंडेशन एक है हमारी, बहुत पुराना अदारा है, मैं उसका प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और आई एम पार्ट ऑफ इट, आई एम द फाउंडर ऑफ दैट। तो उधर हमने किया था 18%, 18% हमारे पाकिस्तानी भी आर रेजिस्टेंट टू एस्पिरिन। उनमें से 9% ऐसे हैं कि आप डोज बढ़ाएं 300 मिलीग्राम से 600 पे चले जाएं तो यू ओवरकम दैट। तो बाकी कुछ 8-9% ऐसे हैं जिनकी साइटोक्रोम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो वो कोई फायदा ही नहीं उनको एस्पिरिन देने का। फिर उनको हम प्रेसोग्रिल और इसी तरह क्लोपेडोग्रिल रेजिस्टेंस भी हमारा 10% है। तो यूजुअली वी ट्रिक्रेगुलर या हम प्रेसोग्रिल उनको यूज करते हैं। तो ये मैंने एक स्टडी भी की हुई है, पब्लिकेशंस भी हैं मेरी इससे। इस वक्त मैं एक स्टडी कर रहा हूँ A4P, क्योंकि मैं रिसर्च इज माय पैशन। तो वो बहुत बड़ी स्टडी है, बड़ी लंबी स्टडी है, 6 साल की, एस्पिरिन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन। तो जैसे आपको पता है कि तो वो हम इस वक्त तकरीबन वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग 29,000 पाकिस्तानी। अब उसमें ऑब्वियसली आप लोग भी हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, जेनेटिक्स आपकी यही है, एनवायरमेंटली फ़र्क हो गए। तो वो बहुत अच्छी होगी हमें ये बताने के लिए कि प्राइमरी प्रिवेंशन में एस्पिरिन शायद हम सोचते हैं कि पाकिस्तानी में अभी भी यूज़फुल है, चाहे वो स्टडीज़ आ गई हैं नेगेटिव के स्ट्रोक के चांसेस, लेकिन हम समझते हैं, लेकिन टाइम विल टेल अस। तो हम ये काफ़ी काम कर रहे हैं इस पे। तो थैंक यू सो मच कि जो आपकी इनपुट है ये बहुत वैल्यूएबल है। मैं समझता हूँ कि देखें, अगर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा
नवाजा हुआ है कि आप फॉरेन कंट्री में वेल सेटल्ड हैं, तो और आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने मुल्क का फिर भी सोच रहे हैं, फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आपको ऑनेस्टली, मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन का चाहे प्रेसिडेंट हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की फाउंडेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, विच इज ओपनिंग राइट लेफ्ट एंड सेंटर क्लिनिक्स विच आर प्राइवेट बट दे आर कैशलेस। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप भी इस तरह के काम करें गवर्नमेंट के साथ। आज क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट के साथ कोई चैरिटी नहीं कर रहा, इसलिए कि वो जो चैरिटी है, ज़कात या सदका या कोई मुझे ट्रस्ट करके देता है, तो मैं ये नहीं रिस्क कर सकता कि कल को गवर्नमेंट उसको प्रोटोकॉल में लगा दे, उसको दफ्तरों में तंजीम और एलिवेशन को बेहतर करने में लगा दे। आई वांट कि प्योरली गरीब को मिले वो चैरिटी। तो वो इसलिए मैं इवन मिनिस्टर हूं, लेकिन मैंने अपना एक ऑल्टरनेटिव चैरिटी सिस्टम बनाया हुआ है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के अंडर, जिसको हम आपका क्लिनिक कहते हैं। इट्स अ नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स दैट वी आर ओपनिंग। उसमें हमने मॉडल ये रखा है कि पहले सबसे जो प्रॉपर्टी जिसपे वो काम होना है वो अल्लाह को दी जाए, ट्रस्ट बना के अल्लाह को दे दी जाए, ताकि उनके बच्चे आके कल को क्लेमेंट ना बने। ऑल इट इज म्यूटेटेड टू ऑलमाइटी अल्लाह's नेम, एंड देन वी एज ए डॉक्टर वर्क देयर फ्री। और उसमें बहुत सारे फॉरेन जो हमारे डॉक्टर्स आते हैं, दे वर्क फ्री, दे गिव देयर टाइम। अमेरिका से बहुत आते हैं, ऊपर उसके ऑफिसेज हैं, रिसर्च सेंटर है, जो भी इनकम वहां से आती है वो नीचे जाती है मरीजों को। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जिसमें अगर आप हिस्सा लेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपने चैरिटी करनी है, पैसे देना सबसे आसान चीज़ है, वक्त देना सबसे मुश्किल है, कि वक्त भी दें कि सही बंदे को वो मिले। तो इसलिए दैट इज व्हाट आई थिंक, रादर देन गिविंग गवर्नमेंट दी मनी, गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत होते हैं, सिर्फ उनकी प्रायोरिटीज फर्क हो जाती हैं। तो अभी हमारी प्रायोरिटीज अल्लाह कबूल करे कि हम तो अल्लाह के बंदों के लिए ही कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट में कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली हमारे कैबिनेट पूरी की पूरी, चाहे चीफ मिनिस्टर है चाहे कोई भी मिनिस्टर है, दे आर नॉट ड्रॉइंग 1 रुपी इवन एज ए सैलरी और एज ए प्रिविलेजेस, नथिंग, जीरो। हम बिल्कुल ये भी फॉर अल्लाह बाय अल्लाह है, और जो हम चैरिटीज कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही फॉर अल्लाह बाय अल्लाह है। एनीबडी कैन वॉक इन एंड वी डोंट चार्ज। उधर गरीब अमीर कुछ नहीं, और आता ही नहीं अमीर आदमी कोई, उसको समझ लग जाती है कि ये सदके के पैसे हैं, ज़कात के पैसे हैं, तो वो नहीं आते। तो इसलिए थैंक यू जावेद साहब। एक सवाल तारिक साहब मैं खाली पूछना चाहते हैं, काफी अर्से से उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। उसके बाद मैं सलमान काजमी साहब को दावत दूंगा, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है सेंट्रल परचेज के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे जो स्ट्रोक के बारे में आपने इंटरवेंशन शुरू की हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील आपसे जानना चाहेंगे। तो पहले तारिक और फिर सलमान। तारिक अजीम साहब। Right, sir. Just the last question, a short question. I think the database is very, very important, especially having a central database like we have for British Cardiac Intervention Society. For hospitals who are doing angioplasty, if they should submit their data with all the details like we do here, it will regulate, basically, it will regulate the whole प्रैक्टिस ऑफ एंजियोप्लास्टी। उससे हमें पता चलेगा कि कितने प्रोसीजर हम कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन रेट क्या है, और एंड दैट विल आल्सो हेल्प इन फंडिंग और पूरी प्लानिंग में, फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हेल्प करेगा। तो डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। We can copy the templates from, for example, UK British Cardiac Intervention Society database को हम उसी तरह का सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल एज वेल। तो इसमें हमें आईटी, पाकिस्तान के आईटी सपोर्ट चाहिए होगी, एंड इफ वी कैन डेवलप अ सिस्टम that will help us a lot for future. बिल्कुल ठीक है। हम ये कर रहे हैं। और चीज़ मैं और बता दूं कि आपको, ये जो हमने स्टेंट्स की परचेजिंग का सिस्टम रखा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो अमेरिका कहीं है, नियर एक्सपायरी 6 महीने की एक्सपायरी अभी रहती हो, तो कई दफ़ा डोनेशन भी आ जाती हैं, उसको भी हम बैंक में डाल रहे हैं। लेकिन वी हैव फाइनली अग्रीड कि हम इसको सेंट्रली परचेज करके हॉस्पिटल्स को देंगे। उसमें 2 कंपनीज मेनली जो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हैं, एक मेडिट्रॉनिक्स है और एक बॉस्टन साइंटिफिक है, और उनका ओपन कंपटीशन होता है। उनका जो लेटेस्ट स्टेंट्स हम खरीदते हैं, हम उनके पुराने स्टेंट्स नहीं खरीदते। अगर कहीं पुराने पड़े भी थे तो हमने उनको कह के
उसकी स्कैफोल्डिंग भी और सारा कुछ हमने सारा वो कर दिया है। टेवी भी हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इन वेरी लिमिटेड केसेस, क्योंकि टेवी अगर हम वेल्व रिप्लेसमेंट कराते हैं तो वो हमें कोई तकरीबन 5 लाख की इधर पड़ जाती है, 4-5 लाख की चाहे गरीब की कराएं, लेकिन टेवी 25-26 लाख की है। तो इसलिए वो हम उनके लिए रिजर्व करते हैं जो हाई रिस्क हों फॉर सर्जरी, तो उनमें हम टेवी करा लेते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं करा रहे हम, वेरी सिलेक्टेड केसेस में। बिकॉज देखें, हमारा कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड बेनिफिट टू द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनली एंड हॉरिजेंटली। तो बजाय इसके कि चंद लोगों पे हम सारा पैसा लगा दें, हमारा कोशिश होती है कि बेस ऑफ द पिरामिड पे ज़्यादा पैसा लगाएं। जावेद साहब, तारिक ने एक पॉइंट रेज किया डेटाबेस के बारे में, उसके ये बारे में डेटा क्या बहुत अच्छा बंदोबस्त? पॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त वाकया ही नहीं कर रहे। अगर वो हमें कोई सॉफ्टवेयर दे दें या कोई सजेस्ट कर दें, आप मुझे ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, तो मैं डेफिनेटली, हमें करना है। अभी देखें, इस वक्त हम बहुत ज़्यादा अपने सेंटर्स आगे ही बड़े रिलक्टेंट थे, तो हमारे पास है PITB। हमने उन्हें ये कहा हुआ है कि आप प्री एंड पोस्ट उसको मूवी हमें भेज दें। इतने पे वो बड़े मुश्किल से एग्री किए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं करना चाहते। हमने ये किया था, लेकिन हम थोड़ा सा फेल हो गए थे कि हम ये चाहते थे जब मरीज का डोर टू नीडल टाइम 40 मिनट्स ही रहे, तो 40 मिनट्स में उनके लिए, दे वर नॉट वेरी लिटरेट विद कंप्यूटर्स, तो वो उनको टाइप करना, उनकी डिटेल्स लेना, स्मोकर है नहीं स्मोकर, फलाना टिमकाना, वो हम वी रियली फेल्ड ऑन दैट। फिर मैंने इन्हें कहा, यार अभी डेटे को छोड़ दो, अभी इसको करने दो, कर दो तुम फटाफट एंजियोप्लास्टी, अगर वो एलिजिबल पेशेंट है, एलिजिबल, और हमें मूवी सिर्फ भेज दो। मगर ही इज एब्सोल्युटली राइट दैट टू बिल्ड अप द फ्यूचर, अब हमें सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे 8 को अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए और सेफ फेयर एंड फ्री हो जाए, तो वी विल बी डन विद। तो अब अगली गवर्नमेंट इसको, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी को सस्टेनेबल बनाती है कि नहीं। हमें वैसे इसको उस लेवल पे ले गए हैं कि हमारे ख्याल में दे विल बी, उनको बहुत मुश्किल होगी इसको अंडू करना, जिस लेवल पे हम ले गए हैं। तो इसलिए अभी हम, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने तजवीज़ दी, होनी वही चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि उसको बुनियाद बना के लोग 6-6 घंटे एंजियोप्लास्टी नहीं से करते लोगों की। ये हमने किया था कि पूरा डाटा ऐड करो, लेकिन इसका कोई ना कोई हल हम देखते हैं जो डाटा फ्रेंडली हो, जो बड़ा क्विक। हम चाहते हैं कि 15 मिनट से ज्यादा ना लगे एंट्री में, बस ये है। जी, एक्सलेंट। सलमान काजमी साहब ऑनलाइन हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं सेंट्रल परचेज के बारे में। सलमान, आप खुद पूछ लीजिए अगर आप म्यूट पे नहीं है। मेरे ख्याल है सलमान साहब की वीडियो इज फ्रोजन, ही मे बी ऑफलाइन। इस दौरान व्हेन ही कम्स बैक ऑनलाइन हम थोड़ी सी बात करते हैं। जावेद साहब, आपने स्ट्रोक के बारे में इनिशिएटिव लिया है, उसकी क्या बैकग्राउंड है और क्या प्रोग्रेस है? स्ट्रोक, टू बी ऑनेस्ट, अभी हम उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ऑन हार्ट साइड हो गए हैं। स्ट्रोक में एक सबसे बड़ा हमें चैलेंज ये है कि बहुत सारे इंटरवेंशनलिस्ट कार्डियक से ही इतने ओवरवेल्म्ड हैं। फिर झगड़ा बहुत है हमारा कि कुछ रेडियोलॉजिस्ट जो कर रहे हैं वो कहते हैं ये न्यूरोलॉजिस्ट का काम नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसका काम नहीं है। मैंने कहा ये हर किसी का काम है। इवन कार्डियोलॉजिस्ट जिसका लर्निंग कर्व, जिसने अंडर सुपरविजन कुछ कर दिए हैं, उनको भी हम करने देना चाह रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे पास, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा कोई 10 लोग हैं पूरे पंजाब में जो कॉर्नरी जो करोटिड इंटरवेंशन कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि मिसयूज हो, तो उसके बारे में डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो कर रहे हैं वो उनको या तो इधर भेज दें तो बहुत अच्छा है। वो हम एक कोर्स रख लें, 1 हफ्ते के लिए आ जाएं, वो हम कोई 15-20 लोग इकट्ठे कर लें जो कर रहे हैं। हम ये भी, क्योंकि लर्निंग कर्व उसका भी जाहिर है वो कॉर्नरी से फ़र्क है, तो हम चाहते हैं कि कॉर्नरी वाले लोग जो बहुत एक्सपर्ट हैं वो नहीं में से निकाल लें लोग, और हमारे पास एक बैंक बन जाए। एटलीस्ट चलें टीचिंग हॉस्पिटल सब में ही होना शुरू हो जाए। तो इस वक्त सिर्फ कोई 4-5 सेंटर्स में हो रही है, ये ज़्यादा में नहीं हो रही।
और प्राइवेट में भी देखें तो 1-2 सेंटर्स में हो रही है। तो जी इसलिए थैंक यू जी, वी we कैन need डेफिनेटली सपोर्ट यू ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक मेडिसिन आपको अंदाजा होगा यूके में काफी डेवलप्ड है और काफी बस अगर मैं अच्छी। किसी को यहाँ से नहीं भेजना चाहता पाकिस्तान से, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, और फिर फायदा कोई नहीं, 2-3 बंदे आ जाएं उधर से, जब कोई आएगा इधर 1 हफ्ता रह जाएगा, 10 दिन रह जाएगा, हम उसकी पूरा खर्चा बर्दाश्त करेंगे, और फिर हम उससे पूरा फायदा हासिल कर सकते हैं कि वो 1-1 हफ्ता मुख्तलिफ सेंटर्स में, साउथ में, नॉर्थ में और सेंटर में चला जाए, तो वो ज्यादा लोगों को कर सकेगा। जी एक बिल्कुल, दैट इज अचीवेबल जी, दैट इज अचीवेबल। हमारे यहाँ पे बहुत let सारे me know, and पाकिस्तानी, then जी you बिल्कुल let me know, and पाकिस्तानी, we will start it immediately. जी बिल्कुल उसमें ठीक we है। definitely need help, उसमें अभी इतनी सक्सेस हमें नहीं हुई। जी यहाँ पे है न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं और स्ट्रोक फिजिशियंस हैं जिसमें पाकिस्तानी काफी प्रोमिनेंट हैं, और खास इंक्लूडिंग कई के अक्सर लोग। उससे सो वी बात कैन करें। डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, विल सेंड देम ओवर एंड होपफुली दैट विल बी सक्सेसफुल। सलमान से इस बारे में पूछते हैं, सलमान काजमी इज बैक ऑनलाइन, के आप ये बताइए कि मेयो में आप थ्रोम्बोलाइज कर रहे हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स को, और दूसरा ये बताइए कि आपका जो पॉइंट था सेंट्रल परचेस के बारे में, उसके बारे में आप पूछिए सलमान काजमी। सर असल में सर जो टीपीए इस वक्त पंजाब में आ रहा है वो लोग मुख्तलिफ तरीकों से लेके आ रहे हैं। अब ये रजिस्टर हो गया, पाकिस्तान में अवेलेबल है रजिस्टर्ड ड्रग के तौर पे। पहले तो ये सिर्फ जो जहाज में आता था रख के ले आता था, ये स्मगल्ड इंजेक्शन के तौर पे इंडिया की साइड से प्रॉब्ली आ रहा था। तो अब मसला ये है कि अगर इसकी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हो जाए पंजाब में, और जिस तरह स्टेंट्स की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो इससे इसकी अवेलेबिलिटी भी आसान होगी और अस्पतालों के लिए लेना भी मुश्किल होगा। क्योंकि अगर ये इसी तरह हर अस्पताल को कहेंगे एमएस को कि आप खुद ही खरीदें और खुद ही लाएं, तो वो उसके लिए परचेज करना भी मुश्किल है और अवेलेबल करना भी मुश्किल है। जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल में अवेलेबल है इस वक्त, लाहौर में नेशनल हॉस्पिटल ने रखा हुआ है, हमीद लतीफ पे अवेलेबल है। प्राइवेट सरकारी अस्पताल, जावेद साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने 10 के करीब अस्पतालों का अखबार में भी इश्तहार दिया है कि ये हम फलां फलां अस्पतालों में स्ट्रोक सेंटर बना रहे हैं। मगर अभी टीपीए की अवेलेबिलिटी एक मसला है। अगर इसको पॉलिसी डिसीजन के तौर पे कर दिया जाए फॉर फ्यूचर पर्पसेस के अगले सालों में ये सेंट्रल प्रोक्योरमेंट से होगा जिस तरह स्टेंट होते हैं, तो फिर शायद ये अवेलेबल रहे और मरीजों को फायदा होता रहे। वरना अस्पतालों में शॉर्ट हो जाएगा तो लोग फिर, ऑल्दो मरीज 3 घंटे में लेके आ जाएंगे या 3.5 घंटे में, मगर वो फिर आगे उसका कुछ हो नहीं सकेगा पेशेंट का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आपको पता है तकरीबन 1.5 लाख रुपए का टीका हो गया है आज अभी, और इसकी हम ये चाह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल्स को अब ऑथराइज कर दिया कि वो अपनी एलसीज खुद खोलें। हम सेंट्रली कुछ चीज़ों की ये इसका, क्योंकि यूज़ भी हमें बड़ा सेलेक्टिव केसेस में, टाइम विंडो भी कम है, अब्यूज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इसका। तो इसलिए हमने इन 10 हॉस्पिटल्स को, जिनको हमने स्ट्रोक के लिए अभी जियोग्राफिकल बेस पे हमने किया है, उनको कहा है कि वो खुद इसको मंगवा लें। हम उनको बैंक ऑफ पंजाब से एलसी का मार्जिन लेके दे रहे हैं। तो क्योंकि हम इसको चाहते हैं जो एक तो टीपीए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं चाहता हूँ, जो कि ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन द सेरेब्रल सर्कुलेशन हो, बजाय इसके कि हम टीपीए इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। जाहिर है कि हम इसको रखेंगे ज़रूर, लेकिन हमारे ज़्यादा होना चाहिए। एक कैम्ब्रिज में पाकिस्तानी है हमारा दोस्त, उसको भी मैं बुलवा रहा हूँ, अगर कैमका की तरफ से 1-2 लोग आ जाएं तो ये भी इंशाल्लाह उसी तरह ही कॉमन हो जाएगा कि, और हम स्टेंट डाल के भी इसी प्राइस में हम कर देंगे टीपीए की। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम फैसिलिटी क्रिएट करें थ्रू आउट पंजाब। सर प्लस ये जो आपने सॉफ्टवेयर की बात की है सर, ये पंजाब आईटी बोर्ड का सॉफ्टवेयर 10 टीचिंग हॉस्पिटल्स में अभी लगा है, ये सही काम नहीं कर रहा है, इनका ओपीडी भी सही नहीं चल रहा है, इमरजेंसी भी ये मैं लैब कैमका यूके के लिए बता दूं कि हम तमाम हॉस्पिटल्स को ऑटोमाइज करने जा रहे हैं, उनकी इन्वेंट्री, इसको हम कहते हैं HMIS सिस्टम। अभी जो मैंने चेक किया है और जो हमारी इसी PIC में साथ जब रीवैम्प हुआ, रीवैम्प मीन्स के ये भी सारे का लगेगा। अभी PITB इसको उस हद तक सपोर्ट नहीं कर पा रही जितना हमारा ख्याल था, और ये हम 10 हॉस्पिटल में नहीं लगा रहे, हम तमाम हॉस्पिटल्स में अब लगा रहे हैं। लेकिन हम डायरेक्टर IT की इनको कह रहे हैं हर हॉस्पिटल एक पोस्ट भी क्रिएट करे, बिकॉज उसमें बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उससे हमारा ख्याल है कि ऑटोमेशन से हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाएगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाएगी। हम सब कुछ बार कोडिंग कर रहे हैं, अब
आप PIC में जाएंगे, जो 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 बैंड है दैट इज द बार कोडेड, और उसके बाद हर ब्लड हर चीज सेंट्रली हो रही है। Thank you, Javed Sahab. I think we are coming to near to the end of the meeting. Rahat Tanai साहब जो कि डायबिटीज मैंने पता एंडोक्राइनोलॉजी उनका के राहत स्पेशलिस्ट था, है। ही वांट टू जी आस्क अबाउट टाइप 2 डायबिटीज। जी मैं सिर्फ ये बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली हैविंग द पाकिस्तानी जेनेटिक्स, मेरी अपनी बहुत सारी स्टडीज हैं जो एक एवरी सेकंड पाकिस्तानी आफ्टर द एज ऑफ 49 इज हाइपरटेंसिव, एवरी थर्ड पाकिस्तानी adult is diabetic and predominantly type 2 डायबिटीज। अभी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने और मैंने डायबिटीज प्रिवेंशन स्टडीज कुछ कर भी चुका हूं मैं, और कुछ कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज पे, GLP बेस्ड रिवर्सल उसमें, और बाकी दवाइयाँ भी ऐड कर रहे हैं SGLT2 और मेटफॉर्मिन। तो दैट स्टडी अभी मैं प्रोटोकॉल इस वक्त ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है, हम प्रेजेंट करने लगे हैं टू रेगुलेटरी बॉडीज फॉर अप्रूवल। वंस इट्स अप्रूव्ड देन वी विल बी डूइंग इट ऑन, उसमें हमारी कोशिश है कि ये डायबिटीज इतनी कॉमन, बिकॉज पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज नाउ कॉल्ड वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज बाय ऑल द अथॉरिटीज। तो वी वांट दैट स्टिग्मा टू बी डन अवे, सो हमें रिवर्सल पे ज्यादा काम करना है। जी जी थैंक यू वेरी मच। राहत आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी, अगर मुझे इजाजत हो तो जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन था अबाउट डायबिटीज प्रिवेंशन। जैसे बात की गई है कि डायबिटीज नाउ द पाकिस्तान इज नाउ द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टाइप 2 डायबिटीज। If you look at data from 2021, almost every third adult in Pakistan has type 2 diabetes, which is far above every single country in the world. हमारी जाहिर बात है जेनेटिक्स भी हैं, कुछ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल भी है। तो मेरे एक दो तीन क्वेश्चन है कि वी आर ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट डायबिटीज रिवर्सल, वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज ट्रीटमेंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की मैनेजमेंट, व्हिच ऑल इज एन आउटकम ऑफ ए डिजीज दैट कुड बी प्रिवेंटेड way earlier than where we are intervening. So my question was, is there anything the government have they got any agenda, any ideas that we can work on? We can help as expats. We'd be very interested to help out. जैसे आपने कहा कि हमने वो जो हेल्थ केयर सिंपोजियम किया था पाकिस्तान में, उसमें वी हैड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोविंसेस, और उसमें यही बताया गया था कि इंडिविजुअल्स और चैरिटीज बहुत ज्यादा काम तो कर रही हैं, लेकिन जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप जो है वो थोड़ी सी इसमें कम है। तो बिफोर इवन ट्रीटमेंट और रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, इज देयर एनीथिंग यू कैन डू इवन बिफोर डायबिटीज डेवलप्स? नंबर 1 एंड नंबर 2 जो है वो आइडिया है अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ शुगर टैक्स। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो गवर्नर साहब से भी पूछा था, बट बीइंग नॉट वेरी मेडिकल, आई थिंक ही उनका जो है वो कोई उन्होंने कहा था कि ही विल डिस्कस इट फर्दर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह मैक्सिको और जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने शुगर टैक्स, स्पेशली जो हाई शुगर बेवरेजेस हैं उनके अंदर जो लगाया है टीयर्ड अप्रोच, इज देयर एनी फिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी ऑफ दैट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? So I'll welcome your thoughts on this. थैंक यू राहत फॉर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं कि मेरी एक बायोस में, विच इज़ ए वेरी इम्पैक्टफुल जर्नल, उसका इम्पैक्ट फैक्टर मेरे ख्याल 40 के करीब है, उसमें पब्लिकेशन है, अगर आप वो देखें, इट्स कॉल्ड ANC स्टडी, एंटीनेटल केयर स्टडी। उसमें वाई एंटीनेटल केयर हैज़ गॉट टू डू विद डायबिटीज, ह्यूज इम्पैक्ट। जो डायबिटीज़ पाकिस्तान में इतनी कॉमन हो रही है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन वजह है, ऑफ कोर्स जीन्स आर देयर, और मैंने जेनेटिक, क्योंकि आई डू लॉट ऑफ जेनेटिक वर्क, माय ग्रुप इज डूइंग ए लॉट ऑफ जेनेटिक वर्क, बल्कि मैं किसी दिन अपने होस्ट अतर से कहूँगा कि वो सिर्फ रिसर्च पे एक इस तरह की मीटिंग रख ले, सो वी कैन आई कैन टेल यू व्हाट वी आर डूइंग। अगर आप सोलर किड्स अगर आप करें ना, सोलर किड्स गूगल, तो आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दैट केस टू यू, विच इज़ ए न्यू डिजीज दैट वी हैव इन्वेंटेड। तो इस तरह जो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ख्याल है वो ये है कि जीन्स में, इसमें क्योंकि पॉलीजेनिक है, एक जीन का डिफेक्ट नहीं है, मल्टीपल जीन का डिफेक्ट है डायबिटिक्स में। तो मैं काम कर रहा हूँ क्रिस्पर नाइफ टेक्नोलॉजी का जीन एडिटिंग पे। तो ऑब्वियसली डायबिटीज में दैट विल नॉट बी फीजिबल, ऑल्दो हमने कर लिया है
थैलेसीमिया में दैट मोनोजेनिक है, तो उसमें हो जाएगी। मोनोजेनिक डायबिटीज पे मेरी एक स्टडी चल रही है विद एक्सिटर यूनिवर्सिटी, पटेल, Cash Patel. I don't know you know him or not. He's a regular visitor and a colleague of mine, and we are comparing. It's a very good study to compare के मोनोजेनिक डायबिटीज की प्रेवलेंस इन पाकिस्तान एंड, और हम सैंपल्स भेज रहे हैं उनको एग्जिटर में। तो आई थिंक यू कैन बी इन्वॉल्व ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। Of course. तो इसमें जो मेरा अपनी स्टडीज हैं, जो मैंने आपको अभी जिक्र किया, ये बायोस में स्टडी में हुआ, पब्लिश भी हो चुकी हैं, कि देखें एक जीन्स का वी कांट चूज आवर पेरेंट्स फॉर ए वाइल, मे बी लेटर ऑन वी कैन इवन डू दैट, मगर अभी इस स्टेज पे तो वो तो जीन्स तो जो हैं एनवायरनमेंट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट शुरू होती है आपकी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ से। अगर IUGR आपकी पुअर है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ, दुनिया में लेस देन 4.5 kg बेबीज जो हैं दे आर अराउंड 12%। ओके, पाकिस्तान में इस वक्त 30% चिल्ड्रन आर born of that weight or less than that weight, which means we need to invest in antenatal care. Skilled birth attendants in that study was available, especially in the rural areas. ये हमने बहुत अच्छी एक study हमारी है, is available only to 18% of the pregnancies. And the second antenatal care is only available to 13% of the pregnancies. So intrauterine growth retardation is the, जब आपकी pancreatic development वहाँ नहीं, तो वो 40-30 साल 20 साल बाद पैदाइश के आपको डायबिटीज डेवलप हो जाती है, बिकॉज यू आर, पाकिस्तान की एक स्टडी है मेरी, चाहे आप यूके में या कहीं, 97% ऑफ पाकिस्तानी दे आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये क्रॉस क्लैम्प टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, वी आर इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड देन ये, तो उधर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है अगर हमने कोई इम्पैक्ट डालना है। प्राइमरी प्रिवेंशन पे हमारा काफ़ी काम हो रहा है कि उन लोगों में जो चाहे लो बर्थ वेट से पैदा हुए, अगर आप एक्सरसाइज एंड फूड कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन शुरू पे ही कर दें तो दैट्स यस डेफिनेटली। जहाँ तक आपका सवाल था कि शुगर टैक्स का, ये मेरा स्लोगन है पिछले 5 साल से, किसी कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया। वी आर द फर्स्ट गवर्नमेंट जो इस पे सब्सिडी नहीं दे रही। अभी रमजान आ रहा है, हम आटे पे दे रहे हैं, आटा मुफ्त भी दे रहे हैं। हम चीनी पे मैंने रखवाई है सब्सिडी। मैंने कहा क्यों आप वाइट पॉइजन से मारना चाहते हैं गरीबों को सब्सिडी देके? लाल नीला पीला शरबत आप इतना रमजान में पिला देते हैं कि जिन HbA1c रमजान से पहले कुछ और होती है, रमजान के 2 महीने बाद देखेंगे बहुत बड़ी होती है। पकौड़े, समोसे, दही बल्ले और नीला पीला शरबत के बगैर कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता अफ्तारी। तो ये एक बड़ा कल्चरल है, और इसमें वो गरीबों को खुश करने के लिए उनको सब्सिडी देते हैं। 9 अरब रुपया सब्सिडी देती है अभी भी पाकिस्तान। इस दफ़ा पंजाब में मैंने नहीं देने दी। तो आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसके मैंने कैलकुलेट किया था 132 हार्म्स हैं, कैंसर, आर्थराइटिस एंड, उसका एक भी मेडिसिनल बेनिफिट नहीं है, एक भी। तो फिर डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा है। आई विश के अब अगले जो पॉलिटिशियन है वो इतना लंबा सोचते नहीं हैं। पाकिस्तान की अगर एक बड़ी प्रॉब्लम आप कहें क्या है, तो जो पाकिस्तानी लीडर बनता है, इलेक्ट होके आता है, वो सोचता है अगले इलेक्शन तक कि हेल्थ में। अब हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कम से कम 15 साल कंसिस्टेंसी चाहिए उन पॉलिसीज की, तब जाके रिजल्ट आएगा आपका। रूरल हेल्थ सेंटर्स में क्या होना है और क्या नहीं। यहाँ पे वो कहते हैं यार बस फीते काटो, फीते काटो। तो थैंक यू। Thank you very much. We had a I think very it's very fruitful insightful. discussion. Thank you राहत, thank you जावेद साहब। तो मैं कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए कहूँगा आसिफ खान को कि वो शुक्रिया अदा करें जावेद साहब का, और देन आई विल क्लोज विद अ कमेंट। आसिफ खान साहब। Thank you very much, and as a General Secretary of CAMCA UK, we'd like thank you very much for आपने अपना टाइम दिया इतना कीमती वक्त, और स्पेशली वीकेंड पे। और we will like कि हम लोग आगे भी फ्यूचर में से वेबिनार्स ही ना करें, और जिस तरह ऑन ग्राउंड आके, जिस तरह हम पहले भी आके हमने भी टॉक्स की हैं, और आके हम लोग वर्कशॉप ट्रेनिंग के लिए हम जो कुछ
एज ए कैम का यूके के फोरम से कर सकते हैं, और जो यहाँ पर पाकिस्तानी एसोसिएशन डॉक्टर्स के जो भी हम कर सकते हैं, वी आर देयर फॉर यू। और डेफिनेटली हमें कोई भी प्रोजेक्ट्स या कोई भी जिस ट्रेनिंग में जिस तरह की आपको हेल्प चाहिए, वी विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आसिफ। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आई थिंक इट इज़ ऑब्वियस टू ऑल ऑफ अस के एक लर्नड क्लिनिशियन कैसे बात करता है अपने मरीजों के बारे में, उनकी इटियोलॉजी के बारे में, और फिर जब एक लर्नड क्लिनिशियन किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, पॉलिसी के बारे में, तो वो कैसे एक्ट करता है। सो वी रियली आर प्राउड ऑफ यू एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू। एक मैं छोटा सा किस्सा बयान करना चाहता हूँ। जब हम अभी 4th ईयर में थे तो जावेद साहब नए नए आए थे इंग्लैंड से क्वालिफाई करके, मेरा एज एन एपी। तो हमारा एक दोस्त था इरानियन जिसको कि लिम्फेडेनोपैथी थी। तो उसने वो इनके पास गया और इनसे अपनी बात की मेडिकल कंडीशन के बारे में। सो ही टॉक टू हिम, ही टुक हिज एक्सरेज, ही वेंट फॉर उस बार हमें एमडीटी वगैरह तो नहीं होती थी। सो ही पर्सनली वेंट टू ऑल ऑफ द रेडियोलॉजी पीपल, आई थिंक पर्सन्स पीपल हु वुड टेक अ बायोप्सी एटसेट्रा। सो उस जमाने से मुझे याद है कि आपका जो पर्सनल कैरेक्टर था एज अ क्लिनिशियन, which was आई थिंक वर्थ एमुलेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपका आज का जो डिस्कशन थी वो बहुत इल्यूमिनेटिंग थी, नॉलेजेबल एंड लर्नड। और जो चीज़ें निकली हैं उसमें एक दो चीज़ें ये हैं कि वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट योर एफर्ट्स वेदर यू आर इनसाइड द गवर्नमेंट और आउटसाइड। और ख़ास तौर पे जो आपने बात की है स्ट्रोक के बारे में, इंटरवेंशन के बारे में, थ्रोम्बोलिसिस के बारे में, और मे बी जो न्यूरोरेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन के बारे में, थ्रोम्बोक्टोमी के बारे में, उसमें के कैमका यूके के पास ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इन पाकिस्तान और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एक और जो चीज़ हम जारी रखेंगे वो है प्राइमरी पीसीआई के बारे में। उसमें ऑलरेडी हमने मीटिंग्स की हैं जिसमें आप शामिल थे, तो उसको हम मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और आपको मज़ीद सपोर्ट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग द एम्बुलेंस क्रू टेकिंग पीपल फ्रॉम होम टू द पीसीआई सेंटर्स, और इसी तरीके से जो कम्युनिटी थ्रोम्बोलिसिस है। तो आपका जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे व्यूअर्स का और पार्टिसिपेंट्स का। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you. थैंक यू। Thank you. खुदा हाफिज़। Stay blessed. थैंक यू। Allah Hafiz. खुदा हाफिज़।